नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। और आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और प्रदीप जी और मैं इस वक्त है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। प्लीज डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स। सम ऑफ योर कमेंट्स आर वेरी वेरी कलरफुल, समवhat abusive, but I don't mind. You can send as many abuses as you want. There's no problem at all. You are total. You It's vote all- for freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. Yeah, sure, but don't. It's not And like letter and Canada. spirit. It's not like the Canadians. You can't pick up a gun and say, okay, fine, we're going to kill all these guys. Don't do that, please, because that we will not be able to read out. We not being in Canada, we can't really do that. And only Mr. Justin Trudeau can justify killing of other people as freedom of expression. God knows what expression. He and draws whose a expression. line between terrorism and freedom of speech. And I wonder if Deepak Vora was right. He said that Trudeau was high. He said that Trudeau was high on some new synthetic drug that he had just snorted before he came over here, for the G20 summit. Because the plane, his plane, was miraculously repaired even as it was standing on the runway. Which is, I would love to know that story, and I would love to ask Deepak where he got it from. Of course, everybody is denying it. Everybody says that, hey, Deepak Vora is wrong. But Deepak Vora is a very senior diplomat. I don't think he would make such a thing. I get rid of that guy. All right, he's very irritating. I don't want him on screen. Please, no, Mr. Trudeau. We've had enough. We don't want you. No, Mr. Trudeau. I tell you what, at the moment we have one of the most brilliant comedians, one of the most brilliant comics, one of the most brilliant writers, and possibly one of the most brilliant actors and television hosts, Mr. Suresh Menon, right here with us. Mr. Menon, very good evening. Good evening, sir. Such a pleasure to be here. Good evening. My name is Rajiv K. Bajaj, otherwise known as RKB. I used to be RKB without a beard. Now I'm just Rajiv K. Bajaj. Along with me, of course, is the amazing advocate Pradeep Nambiar ji. Menon साहब, यार अब मैं आपके 2-3 वो क्या है वो पुराने प्रोग्राम वगैरह देख रहा था। क्या करते हो यार ये जबरदस्त, absolutely brilliant stuff. I tell you what, the film industry per se, especially the people you work with, really. I know you're also creative head of MX Player, but the people you work with have monumental egos. They, like Karan Johar, for example, his ego is bigger than the Qutb Minar. He never forgives. और आपने क्या यार मतलब you've done something to him that nobody's ever dared to do. Were there any repercussions? Were there anything you had to handle, or did he take it sportingly? No, there used to be a lot of chat going on behind that, one should not do this because people don't have a sense of humor. तो बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, बोलना तो पड़ेगा ही, और लेकिन after some time it became quite obvious कि ये रोकेंगे नहीं क्योंकि it was entertainment its best form and अपने आप ही बंद हो गए सारे कंट्रोवर्सीज जो थे उस वक्त। हाँ, लेकिन 2-3 ऐसे सटल हिंट्स मिले थे कि भाई थोड़ा कम कीजिए, हमेशा मत कीजिए। तो मैंने ठीक है भाई, वो बात मैं मानता हूँ। And then sort of I just jumped out from there and started doing a lot of films which were different roles, and thankfully I got to act with my childhood favorite and even acting today everybody's favorite, Mr. Mohanlal, in a Malayalam film Brahmaram. Oh wow, I didn't know that. You acted with Mohanlal? Wow. Yes, amazing. So it changed my whole perception of the acting career that I am still pursuing. I have not given it up, but that changed my whole perception, and thankfully I'm still around. So being a character artist, comedian, it's very difficult to sustain it for a long time. You are still around, in spite of having taken the panties off Karan Johar, and I deliberately say panties. You're still around because usually people disappear when they attack Mr. Karan Johar and that particular camp, which is amazing, absolutely amazing. Good for you. You are a remarkable man. And before Pradeep ji comes in, I really would like to ask you: do you have any favorite comics of your own in India, Hindustan में जो comedy होती है? आप do you have anybody who's your favorite? कोई अच्छा है, कोई बढ़िया बंदा है? Oh yeah, of course. बचपन से हम महमूद साहब को देखते हुए आ रहे, और जितने सारे उन्होंने favorite film, महमूद's favorite film बताइए.
Padosan any day. अरे क्या बात है साहब. And those untalked about films, it was called Jor Mahmood in Goa, Jor Mahmood अरे in क्या Hong Kong. बात, untalked about, जोर महमूद in Goa, जोर महमूद in Hong All the Kong. hits. अरे बाबा रे बाबा, क्या फिल्म है. क्या अरे फिल्म है. ससुरे ने भेजा है, ससुरे ने भेजा है लोहे का हाथी. क्या बात कर रहे हो सर. What a lovely film. ससुरे का प्यार देखो, भेजे हैं गहने. दुनिया मौज में था, मैं फौज में. Beautiful, beautiful. तो अभी के जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, I notice you don't mention them. Why? Today's stand-up comedians, for example, Hindi speaking, I think it was rather unfortunate to have lost Raju Srivastav last year. Yes. He was one of the best at whole genre of stand-ups that came out with Raju Srivastav ji, Sunil Pal ji, Ehsan Qureshi. वो एक अलग सा दौर शुरू हुआ था. उसके बाद the English stand-up comedians started taking center stage, but till date, I don't think they have managed to reach or achieve that sort of laughter that these boys managed And to. Pradeep, I'm really sorry. I need to ask one more question. This is very important for me. I hope you don't mind. सुरेश मेनन साहब, क्या है कि जो आपने राजू श्रीवास्तव साहब की बात करी, राजू श्रीवास्तव was one guy who could turn any object into an object of comedy. जैसे कि लोकल ट्रेन का पंखा, गाय जो बिल्कुल सड़क के बीच में बैठी हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सुनील पाल साहब की अलग से तरीका, वो जो नूरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ऐसा, एंड कुरैशी साहब. Now these guys, they came up with a kind of comedy which was incisive, which was beautiful, which, you know, it had a bit of a bite, but it was not obscene. आज की तारीख में ये क्या है कि each time कोई भी कॉमिक आता है, कहीं पर भी आता है, उसको मतलब सेक्स वाले जोक्स क्यों उसको सुनाने पड़ते हैं आज की तारीख में टू गेट अ लाफ आउट ऑफ पीपल. वो जरा बताएं, ये क्या है यार, ये क्या मिस्ट्री है, मतलब मेरी समझ के बाहर है. I feel कि सेक्स के बारे में जोक्स मारने से, वो डबल मीनिंग जोक्स जो लोग सोच रहे हैं, वो तो किसी के काबिलियत में नहीं है वैसे जोक्स मारना विदाउट रफलिंग एनी फेदर्स. तो मैंने देखा कि काफी लोग ये इस टाइप के जोक्स मारते हैं, लेकिन वी हैव गॉट ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ दादा कोंडके जी, who has got a Guinness Book of World Record, where he made 9 films which are completed the double entendre, but they really did well and really funny films. These boys then afterwards they shifted to, you know, sort of targeting our present government and thought that is stand-up comedy, but no, I'm sorry. Suresh Menon sahab, double entendre is acceptable. It is lovely. Yeah. It requires a lot of thought. यहाँ पे double entendre कहाँ होता है साहब? यहाँ तो मतलब you are talking about sexual parts and things like that on stage. ये क्या है? They should have been doctors. Yes, they should have been. Mr. Menon, they should have been sex doctors or something like that. Ji, you have been always, as you started the program, you are always calling a spade a spade. You always said that, you know, don't take the audience for granted. That's what you said. Good content doesn't require this kind of publicity, and I'm talking about the fake Twitter war that you talked about, the fake Twitter war between Anil Kapoor and Anurag Kashyap. You still believe that good content doesn't require this kind of publicity? Absolutely, absolutely. If you see South Indian films, especially not because I belong to Kerala, but I'm a Mumbai boy, I'm a Maharashtrian by heart. But if you see those films that come down from South, even from Karnataka, if you see a lot of these films which are doing well, they are not going into this rubbish publicity of, you know, making two of your main frontline actors, directors fight or something like that and make it into a controversy to film ko garam kar rahe hain. इससे कुछ नहीं होता. Public will catch you out, you know. And sadly, that film was so good. Like I messaged Anil Kapoor on Twitter saying that you didn't need to have all that. I mean, come on, he's a senior artist, and with that, you don't want to see anybody throwing water on him. And just for the heck of it, for publicity of a film, people are saying, "Oh, that was a great marketing idea." No, sorry, please, that's not the way to do it. You know, if you got great content, and that film was really good, I really enjoyed, and Anil Kapoor was brilliant in that. But you don't need to publicize a film in that manner. If your content is good,
You'll rarely need to do this, because then you're just going on publicity, which is a normal marketing strategy of hoardings, of talking to people, interviews with the actors. You don't need to be hitting each other or throwing water. God knows tomorrow what they'll start throwing. They're anyway throwing a lot of muck on each other for a long So time. every film has its own controversies, and you build controversies. I was saying you don't need that. Absolutely no necessity. And you said you loved acting with Mohanlal. He's an institution by himself. He's an institution by himself. Mohanlal, Mammootty, that era itself was fantastic. Both were too good for whatever they did. How do you see the new stars come into the horizon? They also seem to be all very, very professional. How do you see them, the new stars in the horizon? Oh, absolutely wonderful. The talent that South is producing, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, almost all the languages covered over. Tulu is also picking up where filmmaking is concerned. And it's amazing to see the sort of crop of new actors who come with absolutely no baggages, great stories, great directors. They know the audiences well. And that's why they were a big success. And thanks to strangely COVID, because of OTT platforms, the whole nation started seeing a lot of South Indian actors, and they realized that there is more to the skill, acting skills, than what they were shown before. So everyone have pulled up their socks. Of course, Hindi has got some brilliant actors, Pankaj Tripathi ji, Nawazuddin Siddiqui. All these guys have come up, and they are being appreciated across the country. And thankfully, actors are going to stay. Stars will always remain, there's no doubt. But actors are going to stay, and they'll have a longer run this time. But now you've got actors who don't look like stars. I mean, Yes, yes. they are stars in their own right. Like for example, you look at a guy like Nawazuddin Siddiqui. I mean, 20 साल या 25 साल पहले, could you have imagined that Nawazuddin Siddiqui would be a hero in a film? The film would be based on him. I mean, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्स्ट्रा का रोल मिल जाता बहुत बड़ी बात होती उस जमाने में. लेकिन आज की तारीख में देखिए, look at the talent of the man, he is brilliant. और जो पंकज त्रिपाठी जी जिनकी आपने बात करी, माशाल्लाह क्या जबरदस्त. और जो प्रदीप जी ने अभी नाम लिया, मामूटी और मोहनलाल, और आज की तारीख में भी जो साउथ के नए नए एक्टर्स और नई नई एक्ट्रेसेस जो आई हैं, they are brilliant. Look at the kind of homework they do. Look at the kind of content that there is. So when will Hindi films start getting that kind of content again? एक जमाने में था, अभी दोबारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है. I may be wrong. I may be completely wrong. Okay. I'm not a film buff per se. I love films. थोड़ा सा आपको लगता नहीं थोड़ा डिरेलमेंट हुआ है? हर एक कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है, 20 किलो का हाथ और ये और वो और वगैरह वगैरह वगैरह. तो आपको लगता नहीं कुछ कि समथिंग न्यू हैज टू कम अप? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल 2.5 किलो का हाथ चल गया, तो अब तो 5 किलो 20 किलो का हो गया सर, क्या बात कर रहे हो? 20 किलो का हो गया. नहीं, I feel it's a He's a good very run. good friend. All right, he's a very good friend. Yes, Let me tell you it's a very good frankly. run. And people have started going back to the theaters because of Gee. films like this. As I told you, we need Shah Rukh Khan's, we need Salman Khan's, we need Sunny Deol's films to be hit, because overall the majority of the country, when they go to theaters, they spend that kind of money today. They go with their aspirations. They want to see their dream life come in true in front of them. Even for that momentarily 3 hours, if they are entertained, where it's fights, it's a beautiful dance, it's a beautiful song, and that's all they need. Unfortunately, storytelling of a different kind with all our brilliant actors is slightly a hard sell for theaters to start pulling in the masses into the theaters. They have to find out a way whereby they start reducing the prices of tickets when there is not a mega star in the film, so that people are encouraged to go to the theater and give them a separate sort of experience. No, which Otherwise, is your it won't favorite be a film? push. Which is your favorite Hindi film from the recent past? Hindi Oh, picture. sorry, I'm a diehard Shah Rukh fan, so So I is loved everybody Pathaan. else. I हम सब हैं loved साहब. जी बताएं. I loved Pathaan. I loved Jawan. Gadar abhi dekhna baki hai. But if I had a chance, I would go to Kerala and watch this new film called RDX, which has done very well in theaters, made at a budget of 8 crores, went on to cross 100 crores. And your opinion about the Kashmir Files?
It's a film, and I had a little bit of an issue with it in the sense I felt there was more that could have been said, which was not said. I think films like this should be made because, after all, why should we shy away from what's happened in our जी country? दुरुस्त बात. When people across the globe are making films which suit them, a film is a film. So whatever rules are uh, uh, applicable by today's woken up people is also applicable to all the films. So अरे भाई filmmaking. देखिए सुरेश मेनन साहब, अगर आप जूइश हॉलोकॉस्ट के ऊपर जो नाजियों ने बिल्कुल। मतलब 50 लाख के करीब यहूदियों को जान से मार दिया, उसके ऊपर ना जाने कितनी फिल्म्स बनी हैं, अभी तक बन रही है, और अभी तक बन रही हैं, आज तक बन रही हैं. आप देखिए ना, द रीडर बनी, शिंडलर्स लिस्ट बनी, और न जाने और कितनी फिल्में बनी, द बॉय इन द स्ट्राइक पजामास बनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कश्मीर के ऊपर भी कोई ऐसी फिल्म बननी चाहिए. तो चलो चलो शुरुआत तो हुई है विनोद. Now there's Razakars for example. Razakars आ गए. Now they say it is political है, तेलंगाना में elections है, तो रज़ाकर पिक्चर बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी के हाईलाइट करने वाली है. लेकिन do you think it is politically motivated? Politically motivated in the sense. that is, I think it's the elections when they come closer, all this type of loose talks keep on happening, and I don't think any government has got the time or the bandwidth to be producing films. I'm sorry to all those people who are saying that government is busy producing films. That doesn't happen. We know that. It's a story is a story. Somebody wants to tell a story in his own way. You may be right wing, left wing, or any wing, or you may have no wings. But if you have a story to say, please tell it. सुरेश मेनन साहब, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, stepping from what Pradeep ji just asked you. And by the way, Mr. Nambiar originally, Advocate Nambiar originally is from Kerala. Of course, he himself has been born over here in Mumbai, and so have, 3 generations removed, they're all here. Now, sir, whenever we ask anybody from the Congress कि यार ये hate politics की जो आप बात करते हो, उसका solution क्या है, उसका जवाब क्या है, तो कहता है हमने जवाब दे दिया ना, जवान है ना जवाब हमारा, जवान is our answer to hate politics. अब आप ये बताइए, जो मतलब एक तरफ जो है दे आर ओनिंग शाहरुख खान. देखिए साहब, इसके पहले जवान, उसके पहले क्या है वो पठान, और माशाल्लाह अभी वो टाइगर पार्ट 3 आ रहा है. तो ये क्या है, मतलब ये कोई डिवाइड हो रही है बॉलीवुड में, क्या है मतलब? आई दिस काइंड ऑफ थिंग नेवर यूज्ड टू टेक प्लेस अर्लियर. बाय द वे, जो पड़ोसन की आपने बात करी, मैं आपको बता दूं, दत्त साहब जो थे बड़े अच्छे मित्र थे हमारे, and he always used to, by the way, till the end, he would never refer to Saira Bano as Saira Banu ji, he would always call her Mrs. Dilip Kumar. He was from that kind of a generation. So I am saying, will we get the old days back in a way where everybody will respect each other, or do you think this divide has come to stay? Suresh Menon sir. The divide in the industry has been there for a long time, where I have seen that one man's film, or one hero's super hit film is another man's flop. So the inter-bitching that used to be happening in between the industry itself, within the industry itself, is the first poison that they have to take out and then start addressing other issues. So if that poison is taken out, thankfully now they are seemingly united right now. And if they maintain that front, there is no reason where they can start respecting each other. If you look at the older generation of actors, they still do respect each other. Of course, they were all at loggerheads at one point of time. There were ego clashes between Shatru Saab, Bachchan Saab, everything. We have heard about it. But the kind of respect that they have for each other, if the younger generation could also follow that. Now they seemingly they are following it. I think hopefully. Amitabh Bachchan ji had a great sense of timing where comedy is concerned. People used to love his comedy. The kind of facial expressions and the timing was absolutely superb. Whatever you call him, an action hero, but his comedy was equally good. Now you are a great Shah Rukh Khan fan. Salman Khan has a very good timing where comedy is concerned. How do you rate Amitabh's comedy with Shah Rukh Khan's kind of humor and Salman Khan's? Yeah, I think for our generation, Mr. Bachchan will always be our favorite first superstar. Not forgetting Rajesh Khanna Saab. Arey Rajesh Khanna Sahab re, So without forgetting Rajesh Khanna Sahab, Bachchan sir will always remain our superstar, and there is no substitution for him. Whether you like it or not, today even the youngsters, the Generation Z, as they call them, they are all Amitabh Bachchan fans. So it's like
they are there, but if you have to reach that level of Amitabh Bachchan stardom, you need something extra, and you need that baritone voice, of course. And as you rightly said, his comic timing is quite amazing, and you can see how beautifully he uses that at times in his quiz show. So respect, and like I'm really sad that Mr. Bachchan doesn't allow us, people like us who are very good in changing our characters, to dress up like him anymore or even talk like him. Ji. But like I told one, somebody asked me, I said, when you wear that costume, dressed up like Mr. Bachchan with his wig, with his specs, you feel like for a moment you are Mr. Bachchan, you know, and then you were, जी "आज खुश तो तुम बहुत हो गए, हैं?" Isn't that wonderful? वो तो खैर आपने बड़ा सीरियस डायलॉग बोल दिया कि आज खुश तो बड़े बहुत बहुत हो गए तुम, लेकिन जो प्रदीप जी ने बात करी, आप हर फिल्म में उनकी देख लीजिए जहां पर जरा भी कॉमेडी आती है, आई थिंक मिस्टर बच्चन इज ब्रिलियंट, absolutely brilliant at that. There's nobody even to touch him there. He's fantastic. I mean, Dharmender Sahab had his own style of comedy, but Mr. Bachchan, oh God, he is absolutely out of the world. Shatrughan Sinha Sahab, I don't think could do comedy very well, very frankly speaking. I don't think Mr. Sinha is going to like this, but he couldn't. You know, but लेकिन आज की जनरेशन में, फॉर एग्जांपल, आज की जनरेशन में अभी के जो एक्टर्स हैं, आप एक शाहरुख खान को जरा छोड़ दें, बिकॉज शाहरुख खान इज योर फेवरेट एक्टर, उनके अलावा अब आई मीन माय ओन फेवरेट फिल्म इज चेन्नई एक्सप्रेस. You look at that film, it's out of the world, it's fantastic. But अभी की जनरेशन में जो फिल्म स्टार्स हैं, उनमें all round टैलेंट किसके पास है आपके मुताबिक, सुरेश मेनन? They don't make them like Govinda anymore. So seriously, there's everyone has got a specific thing to do. Like earlier, there used to be Sanjeev Kumar Sahab, who could do every role possible. Yes. Of course, you know, and Govinda ji, every role possible, anything that he threw at him, it used to come back so beautifully done. Today's actors are more focused on their bodybuilding. They're more focused on their protein shakes and and six packs. And six packs. So yeah, if you have them, you show them. And but you know, like when we do mimicry, we picked up actors with charisma, style, and voice modulation. Shatru Sahab, you know, Sunny Deol Sahab, Dharmender Sahab, everyone's voice and style. And everybody's favorite, Rajkumar. Yeah, that power is missing. You know, Ji. that sound is missing from the heroes today. We're still waiting for that one more baritone voice to come here, one more really powerful voice to come through. But none of these guys have it, right? All the new guys. You look at Ranbir Kapoor, you look at Ranveer Singh, you look at Vicky Kaushal, you look at Ayushmann Khurrana, you look at all these guys. None of them have that star quality or that voice. Why is that? Why is the new generation, why do they have these squeaky voices? What's happened? Yeah, absolutely right. Because yeah, you know, it's like when you do mimicry, you know, you latch on to voices which ring in your head. So these voices really don't come and ring in your head at times. You know, so Ranbir Kapoor, there are very few people who I am Ranbir Kapoor. You know, but there's nothing to match them. So I don't know, maybe it's a diet that you're following, or there's something wrong in the air. But I'm sure there'll be one more. Or they never allowed their voice to mature. Like for example, if you remember, in medieval Europe, you know, little boys had to go through a particular operation so that their voices remained exactly what they were, so that they could sing in the choir. Do you think something like that has happened to these guys? Oh God. I didn't say it. I did not say it. All right. I'm not saying anything. Something they consume to, I mean, to keep him. Yeah. You look at. I'm saying. You know what I'm saying is, माशाल्लाह देखें, रणवीर सिंह साहब ने बाजीराव का रोल किया है. बाजीराव बलाल भट्ट, अलाउद्दीन खिलजी, और जो आवाज निकलती है वो तो मतलब बॉय नेक्स्ट डोर की है. मतलब वो तो क्या है, मतलब See, also फिल्म के जो लैंग्वेज है चेंज हुई है, फिल्म के लिए जो प्रिपरेशंस हुआ करती थी वो सब सारी चीजें चेंज हुई है. You know, so unfortunately earlier whatever said and done, there used to be rehearsals happening. Here also that they do a lot of reading and all that stuff in modern times, as they call it. But voice modulation is an art which not many of them have. So who's your favorite actor in terms of voice? Mr. Bachchan, voice.
In today's voice, it's still Mr. Bachchan. Yes. And of course, the Southern stars, they have done well. They maintained. So can we hear something of Mr. Bachchan from you? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। आजकल के सब बच्चों के सामने मैं आज भी शहंशाह हूँ। आगे कोई नहीं आएगा, ना पीछे कोई रहेगा, बस मैं ही मैं हूँ। And Mr. Shatrughan, one second. And Mr. Shatrughan Sinha. ओ बच्चे तो बच्चे रहेंगे, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं खेलना है जिनकी आवाज नहीं है, जिनकी जवाब नहीं है, कोई दिखने में भी ठीक नहीं है। And Mr. Dilip Kumar. I'm sure you love Mr. Dilip Kumar too. ये जो आजकल के बच्चे हैं, देखिए गौर फरमाइएगा, कुछ नहीं कहते हैं, अपनी जुबान से आवाज नहीं निकाल सकते। अरे भाई कोई है, मैनली वॉइस वाला कोई है? Mr. Menon, inspiration. This is comedy. Any dialogue that served as an inspiration, like to many Rajesh Khanna's that "Bahu Mashai Zindagi aur Maut Upar Wale," that is one inspiration for many people. And for budding, some of the builders and real estate giants we met, they were inspired by the Trishul dialogue of Amitabh Bachchan. Where he's saying, Mr. Gupta, 5 lakh jeb mein nahi hai aur 5 lakh ka sauda. You have any kind of inspiration, that this dialogue inspires me, eternally. Oh, I just still love the saying from Shahenshah. I use it because when new comedians come, a lot of people ask me, "Ab kya hoga?" and all. I just tell them, "Rishte mein to hum tumhare baap hote hain. Naam hai Shahenshah." So I use that dialogue is very important for me because I still feel like a Shahenshah. I still feel that a lot more to contribute in the acting industry, and the field opportunities have become less, but it's for me to drag it out and start doing something more. No, hold it, wait. The fact is that even at that time, there's one guy who always used to get ignored. Even though he's given hell of a lot of hits, both as an actor and as a producer director. That is Feroz Khan. लेकिन एक ज़माने में फिरोज खान साहब की भी मिमिक्री किया करते थे लोग जबरदस्त तरीके से. You remember anything of him? I remember Javed Jafri imitating him very well in I think Tararampam. Yes. Well, I don't like this. But the way Feroz Khan Saab used to speak, my God. I think Feroz Khan Saab was a style icon, and if today, like even style, there is no one. There's a Jackie Shroff, there has to be Feroz Khan Saab, and then there is no one. Then there are only clowns. Then there are only clowns. Absolutely. There were so many mimicry actors, especially from Kerala. You had Jairam, you had Dilip and all, who made it so well where the industry, Kerala, Malayalam industry was concerned. So how do you see the mimicry artists becoming good performers, good actors? We have a lot of examples of them. Yeah, Jairam is a classic example. In fact, Jairam sir started doing, I still remember Kamala Hassan's film where he had done a small bit that you incorporated his mimicry in a scene, which he did so well. And then, of course, they used to have these mimicry parades. They made movies with them. It was so funny. Innocent sir, I took a lot of inspiration from Innocent sir also when doing comedy in the Hindi films. So perfect. That was perfect to stay innocent. Yeah. So I think that in Hindi also we tried a lot, especially under the able leadership of Sunil Pal, Rajesh Srivastava ji, and that whole gang. We did try to do something different, like make a mimics parade sort of a film where Bombay to Goa Part 2 was made by with all these actors involved in it. But yeah, unfortunately, there were not many takers. But it was a great attempt, and I think we should still try once more. Yes, and I think Sunil Pal made a lovely film, taking all the comics, including Kapil Sharma, including Raju Srivastava, including everybody else. What do you think of Kapil Sharma? Now that's the elephant in the room. Let's talk about that, because he's the guy who's actually monopolized comedy and made it into his own brand. Not only has he made it into his own brand, he's become a billionaire from that brand. I'm really happy for Kapil because the way he has struggled. In fact, the thing is, we were doing a show on Star One called the Great Indian Comedy Show. Yes. At that time, they had this show called the Great Indian Laughter Challenge.
Yes. Kapil Sharma was one of the contestants in one season, and the way he has grown is really admirable. But it's on TV channels also to realize that this is not the only way to project comedy. This is not the only way to do it. So there is a lot of space for doing comedy. But unfortunately, when you go and pitch shows to them, the first thing that comes, oh, we need comedians who are influencers, who got this sort of following and all that stuff. So that is, I really can't understand what Instagram followers or YouTube followers has to do with comedy. So I'm not able to understand that little bit And we don't even know whether those Instagram followers are real or not, or whether they're just bots. absolutely right. But they're very happy. They're very happy with it. But I'll tell you what, sticking still to Kapil Sharma, I'm so sorry. Kapil's a great guy. He came on our show and I couldn't keep the tears out of my eyes. He made me laugh so much. You know, especially वो हवलदार के बारे में जो करता है ना, वो पंजाब वाला, पंजाब पुलिस, वो रिचर्ड गेयर को बुला करके, hey, तुमने पप्पी कैसे लिया शिल्पा शेट्टी का, and all that, that's a great thing. But I tell you what, there is a lot of, I saw a couple of shots of Kapil Sharma's show. It's a bit of a misogynistic show in the sense that he insults women, talks about them in a particular manner, and I agreed. All the women on his show are all guys dressed as women, most of them at least, except a few. So what do you think of that? I mean, is that all right to keep insulting women all the time, to crack these sexist jokes which are completely anti-women, which used to be told in all the street corners of North India, not so much in the South? Absolutely. The South has always respected women, has always had a great deal of respect over there. But in the North, especially in Haryana and in Punjab and in UP, it's been terrible. So don't you think that is feeding into that kind of anti-woman, misogyny? Mr. Menon. So I feel, see, there were a lot of humor earlier was about Jorus. Joru ke Gulam, hum log ne suna hai. So it used to work on that platform a lot, and also the jokes. I always feel that today to change, you need to change with times. So it can always be the woman giving it back to the guys. I know that's where the writing comes in. But unfortunately, what has happened is everyone goes with what is working. If the numbers are good, if the TRP is working, so nobody wants to, as you rightly address, that's the elephant in the room, but nobody wants to touch it. So in effect, what you're really saying is, most people become prisoners of their own success. Exactly what happened to Mr. Bachchan towards the end of his career as the angry young man. So which is why he had to reinvent himself, so to speak. So, and it's very easy to do. Today, instead of cracking, I used to crack a lot of jokes on my wife earlier on my stand-up comedy, but now I reversed it by making my wife being a stronger person than me. Can we have a bit of a sample of that, if you don't mind? So, like somebody asked me, "Are you scared of your wife?" I said, "No, I'm not scared of her at all. I'm just terrified." And what else? That's fine, but what else? Oh, a lot of things. I recently said that I love my wife so much that she's the only person in my life who doesn't make me miss my parents at all. She's so good. So people said, "Oh, really?" I said, "Yeah." Because whenever I go out, I get a call. Where are you? Who are you with? Don't talk to that girl. Come back home soon. Be on time. Don't stay out late. Don't drink too much. Don't play around. So all those things. See, only wives can do that. Correct? At least you get a message. Don't drink too much. I get a message. Don't drink at all. How dare you drink? And even if I have a glass of whiskey in my hand, I say, are you nuts? I am a teetotaler. I don't drink at all. What are you talking about? No, but really, all that I'm trying to say is that, do you miss the writing? At one time it used to be brilliant, and after that I have one more question, then we'll let you go. The writing at one time used to be absolutely brilliant for all these television shows and for stand-up. Now that has become slightly jaded. You do have a couple of guys. You have that, what's that boy's name? That Grover. He's okay, good boy. Then there's another chap whose name I always forget. Rahman Khan, I think his name is. He's another one, and so on. But and he cracks jokes, especially about Muslims and about the Pakistani connection, where he says कि यार मतलब हिंदुस्तान जीतेगा तो मैं भी जीतूंगा ना, मतलब that kind of stuff. But what I'm trying to say is, do you miss that kind of brilliant writing that used to be there earlier in the earlier movies, where just a play of verbiage you used to get you the laughs that you require?
Yes, today, unfortunately, even the writers, the experienced writers, the really funny writers, Yunus Sejwal, Rumi Jafri, Arshad Sayed, all these writers, somehow they have the instructions that come is कि आज का कुछ लिखो, बच्चों को अट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो उस ह्यूमर में चले जाओगे तो नहीं होगा. कादर खान साहब and Govinda and Shakti Kapoor Saab, the way the humor used to fly, simple things. I think if you keep it simple, even today, like किराने वाले के वहां पे जाके जो कॉन्वर्सेशन हुआ करते थे कादर खान साहब एंड असरानी साहब के, ब्रिलियंट. इवन नाउ यू कैन वॉच एंड लाफ, एंड इट्स नॉट ओनली मी हु इज लाफिंग, बट इफ यू शो इट टू यंगस्टर्स, द जेन जी, even they burst out laughing. And it's for the whole family. Yeah, absolutely. So keep it simple. Keep it simple. Go back to your roots and start writing for the common people who are a majority. हाँ, हाथ में सेल फोन हो गया तो सेल फोन के ऊपर जोक्स मार सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. Let's hear a cell phone joke. Let's hear a cell phone joke. Oh my God, cell phone joke. I mean, I think we are all addicts to this instrument, and there's no way it's become an appendage. So इसके ऊपर जोक मारना भी डर लगता है, because पता नहीं कि कुछ सुन लिया तो बाहर चला जाएगा. Along with Govinda, Shakti Kapoor, Kader Khan, you talked about, and there was some element of Johnny Lever in there also in some Most movies. important. That was making Johnny Lever also made a lot of interesting. Yes. The bhais and भाई कौन सा बैंक है, ये भाई लोग का बैंक है, all this kind of. So what do you think of Johnny Lever? Oh my God! Wow, what an amazing person. I feel that guy is a true legend, and from where he has come and where he has reached, and his supreme humbleness and the way he greets people and talks to them is something that you meet him, it's automatically you just do a pranam to him, because such a wonderful person, and the humor that comes out from him is something absolutely crazy and brilliant. And even today, that sort of energy, that sort of happiness to see us and talk to us, and we both talk a lot about mimicry. So Johnny bhai always used to say, मैं आवाज से ज्यादा उनका स्टाइल पकड़ता रहा, walking. Correct, exactly. Exactly. And that was so much of joy, so that. All right, one final question. There's so much of joy in Johnny Lever. That's what you said. And Johnny Lever is also a great prankster. But then this show will go on. It will not stop. We can continue talking about this for the next 5 days, and we'll still not exhaust ourselves. But Mr. Menon, you talked about guys who don't have a baritone voice. You had a couple of people. Om Puri Saab, he has just left us. And then, of course, there is Nasiruddin Shah. You still have guys like that. What do you think of Nasir Saab's voice and Om Saab's voice? Om Saab, I think I've worked with him, and I've seen him at close quarters for this film called Full and Final. It's amazing with that serious face, the sense of humor that he had, and he was really going through a rough time those days, I remember, but he was so funny. And I'm talking off camera, so there are a lot of conversation. We used to just talk normal things, and there's to be a lot of laughter. That laughter that was created was amazing. And these are all experiences, छोटी-छोटी चीजें, गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं या दाल चावल के बारे में बात कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीजें. Unfortunately, I don't remember, but I spent some really good time with him during shootings. And of course, the other big baritone voice, we can't forget Amrish Puri ji. There's no villain with that sort of voice today. We don't have that kind of voice at the moment, yes. What about Nasiruddin Shah? लाख गुनाह है, हजार गुनाह है. क्या बात है. So Nasir bhai is, of course, everyone knows him. I think brilliant actor, but yeah. But what? Go on. Come on. No, we are a free show. We allow everybody to talk. We don't censor people. Go on. No, Nasir bhai is, I think somehow I whenever see him nowadays, I feel that he's disconnected from the craft and little away from it, or maybe he's tired, but his brilliance we have seen in earlier times, or maybe somebody has to go to him with a really good script to really make him feel young again. Oh yes, or maybe he's missing Om Puri. 100%. That's sort they of were inseparable. Yeah, they were, and maybe he should just start working with good actors. Yes, and by the way, just for the information of our viewers, क्योंकि Om Puri साहब की बात आई है, by the way, Om Puri is the man from the Hindi film industry who's acted in the maximum number of Hollywood films. सबसे ज़्यादा Hollywood film Om Puri साहब ने करी है. And Nasiruddin Shah, by the way, remains the only Bollywood actor
who had his name above the title, along with Sean Connery in a movie, in a Hollywood movie. I mean, that's amazing. These guys have achieved so much, and when they came into the industry, Shabana Azmi said, तुम इतने बदसूरत लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें लगा कि तुम एक्टर बन सकते हो? That's what Nasiruddin Shah himself recalls. Yes, see, thankfully times have changed, as we discussed earlier, and it's about personality, and it's about power in one's performance. It's about your physical attributes, and of course the training with which all these actors have come. And these guys didn't have a six-pack. Absolutely, No. no necessity. That power is there in the word. Like Sean Connery, Nasiruddin Shah in A League of Extraordinary Gentlemen. Yes, League of. Great movie. Suresh Menon, it's been a real pleasure and an honor to have you on the show. Real pleasure. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much for your time. And to Mr. Nambiar, I'll say, Veendum Kanam. It's so kind of you. Thank you very much, Mr. Menon. Thank you very much. Namaskar. Thank you for having me on the show. Thank you. Vande Mataram. Vande Mataram. That was really and truly enjoyable. Yes. Very enjoyable. Fantastic. Absolutely fantastic. And then one could continue talking to him. Exactly. And Continuously. At least for another hour. And then Pradeep, hour will be too late. Because once he gets started off on various things, he'll never stop. And at the moment with us, from the Congress Party, our very old friend who looks like a film star himself, Nazir Hussain Saab. Nazir Hussain Saab को असल में अब वो कांग्रेस पार्टी में कैसे आ गए मुझे मालूम नहीं है. असल में उनको फिल्म स्टार होना चाहिए था. अब क्यों नहीं है मुझे मालूम नहीं है, वो तो उन्हीं से पूछते हैं. नाज़र साहब नमस्कार. नमस्कार सर. सर आप ये बताएं पहले, ये मिस्ट्री सॉल्व करें सर. नमस्कार. नमस्कार सर. कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं है, पहले आप ये बताएं. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बाकी सब चीज छोड़िए. ये जरा हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई आर यू नॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री सर? सर हंसी आ रही है आपको, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ. मैं बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ सर. रियली ये मेरे लिए क्वेश्चन ही नहीं है. चलिए हो गया काम. दैट्स इट. ऑलराइट गाइस, ऑल ऑफ यू हु आस्क्ड दैट क्वेश्चन, ये नासिर साहब के लिए क्वेश्चन ही नहीं है. सीधी सादी बात है. अच्छा सर ये बताएं, अब ये हो क्या रहा है? अरे अभी जयपुर के अंदर राइट हो गए, उसके पहले कुछ और हो गया, उसके पहले कुछ और हो गया. ये क्या हो रहा है? मतलब हिंदू मुस्लिम करके अभी तक हम लोग थके नहीं. 75 साल हो गए यार, अब तो थक जाना चाहिए ना लोगों को. क्या कर रहे हैं हम लोग? नासिर साहब. बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात नफरत की है. क्योंकि नफरत की जो बाजार लगी है, किस तरह से लोगों को डरा धमका के वोट लिया जाए, उस पर ज्यादा फोकस है. क्योंकि आप देखिए अभी कुछ, मुझे याद है शायद 2-3 दिन पहले ही महाराष्ट्र का एक वाकया है. एक महिला, मराठी महिला थी, वो किसी घर से रेंट पे मांग रही थी और उसे नहीं दिया गया. इत्तेफाक देखिए वो महाराष्ट्र का और देश का बहुत बड़ा न्यूज बना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया. मगर यही पीड़ा मुझे लगता है बरसों से माइनॉरिटी झेल रहे होंगे, पर कभी ये आवाज नहीं बनी, क्योंकि ये किसी के लिए मतलब की न्यूज नहीं रही. एक मराठी महिला पे जब ये हुआ तो लोगों की नींद खुली. क्योंकि ये बीच कब बोल गई थी, ये देखिए हिम्मत कब लोगों को मिलती है कि एक महाराष्ट्र में एक मराठी महिला को घर नहीं दे रहा. ये उनको तब हिम्मत मिली जब माइनॉरिटी को लोग मुंह फोन पे सामने से इनकार करते थे, हम तुम्हें घर नहीं देंगे. तो उनकी हिम्मत बढ़ती गई, और हिम्मत बढ़ते बढ़ते देखिए आज महाराष्ट्र में ही मराठी महिला को मना कर दिया. इसलिए बोलते हैं ना, ये नफरत की बाजार लगी. हिंदू मुस्लिम करो, नफरतों में बांट दो, ताकि देश में हर चर्चाओं पे चर्चा ही बंद हो जाए. हमें लगा कि मणिपुर शांत हो गया, सब कुछ सही हो गया, पर आज देखिए वहां की सरकार खुद उसे क्या घोषित कर देती है, बोलती तमाम जगह दंगे हैं, फसाद है, यहाँ इवन सीएम के घर तक जलाए जा रहे हैं. तो आज भी मणिपुर वैसे ही जल रहा है, उस पर चर्चा नहीं है. ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके 2024 की तैयारी आप देख लीजिए, इससे किस समाज को पैदा हो रही है, कौन सी समाज इसके अंदर जल रहा है, उसको देखना पड़ेगा. आज हर समाज जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है. बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तंभ पे. आज बेरोजगारी इतने बुरे कंडीशन में जो 45 साल पहले भी नहीं. महंगाई देख लीजिए, रशिया से सस्ता तेल आ रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा, उस पर चर्चा नहीं है.
पर आज भी मीडिया के लिए हिंदू मुसलमान यही चर्चा का विषय है और इस पे हम बार आप रोज चर्चा करते हैं। हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं उन महंगाइयों पे, हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं अपने बेरोजगारी की, हम क्यों नहीं बात करते हैं कि लोगों की मुस्तकबिल बनने, हम क्यों नहीं बात करते हैं कश्मीर में कि कश्मीर में आए दिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वहां के लोग शहीद हो रहे हैं, वहां के आर्मी शहीद हो रहे हैं, आज वहां के पुलिस ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, घर लोगों का उजड़ रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माँ बहनें बेवा हो रही, उस पर हम बात नहीं करके हम सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में अटक गए। यही तो हमारी विडंबना है सर। जी तुरंत बात, एक सेकंड प्रदीप जी, एक yes, सेकंड। जो आपने बात करी ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में वटाना बोलते हैं ना, वटाना मटर, मटर। आपको मालूम है आज फ्रेश पीस, प्रीमियम फ्रेश पीस, प्रीमियम फ्रेश पीस मतलब जो पूरे मटर के वो दाने के अंदर पूरे दाने होते हैं जिसमें जो खाली नहीं होता सर, आज उसकी कीमत जो है वो 220 रुपये है, 220 रुपये किलो। 220 रुपये के मटर मिल रहे हैं आज की तारीख में किलो। बाकी भी हैं इधर उधर सड़े बड़े जो हैं वो मिल जाते हैं 60 रुपये के, 70 रुपये के, 80 रुपये के। 220 रुपये किलो अगर मटर मिलेंगे तो क्या होगा सर? आप ये बताएं मुझे, कहाँ जाएगा कोई? मतलब नासिर साहब, मैं कहा बजाज भाई कि महंगाई इस दशा से बढ़ रही है जो सपनों में भी हमने ख्याल नहीं किया था। मैं आज इंसान की इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम घटती चली जा रही है, महंगाई आसमान पे। आज देख लीजिए कल दिल्ली में 1 लाख लोग जो रिटायरमेंट हो चुके हैं पेंशन के लिए लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है, जो आज मैं नहीं कहता एक राजनीति दल की, तमाम राजनीति दलों में बात देखिए, एमएलए एमपी दूसरे चुने हुए लोग पुराने पेंशन 2 बार जीते तो 2 बार का पेंशन, 3 बार जीते 3 बार का पेंशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार का पेंशन ले रहे, मगर जो पीछे से जो चले आ रहे हैं, जो 32 साल 35 साल 40 साल देश के लिए नौकरी करते हैं, उनके पेंशन की बात नहीं हो रही है, उनको पेंशन देने की बात नहीं हो रही। वो पेंशन की बात कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, हमारे देश हमारी प्रियंका गांधी कर रही है, हमारे खड़गे जी कर रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वन नेशन की बात कर, आज देखिए ना वन नेशन की बात सब खत्म हो गई ना, इलेक्शन की बात चर्चा में नहीं आएगी क्योंकि सगुफा छोड़ते हैं किसानों के लिए। देखिए कितनी जल्दी बिल लेके आए थे और इन्हें आज वो बिल कहाँ है पता नहीं। एनसी क्या बोलते हैं उसे, जो अभी कानून बनाया था एनसीआर का, वो क्या हुआ? एनआरसी का क्या हुआ? आपने बिल तो पास कर दिया, क्यों नहीं कानून बना पा? क्योंकि ये एक नफरत की बाजार सजा दी। एनसीआर कर दो, गन्ना कर दो, आज जातिवाद में लड़ा दो। आप एक रोनी कमेटी की तो पढ़ाई होगा, रोनी कमेटी का रिपोर्ट देखिए। अब अगरों पिछड़ों की पिछड़ों अगरों में भी लड़ाई लगाने का काम कर रही है। तो आप देख लीजिए किस तरह की नफरत बाजार में फैला दी गई है कि कौन किसको क्या मिल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। अब बताइए ओबीसी में भी लड़ाई लगाने का काम कर रही है। ठीक है, मैं जानता हूं कि कुछ अपर ओबीसी को उसका फायदा ज्यादा मिला होगा, लोअर ओबीसी का नहीं मिला, ये मुझे एहसास है। और उस बात को आग लगाने की क्या जरूरत है? उसको आप सत्ता में रहते हुए आप क्यों नहीं उस लोअर ओबीसी को फायदा दिया? क्यों नहीं आप फायदा देने का काम करें? सिर्फ यादव समाज को टारगेट करना है, कुर्मी समाज को टारगेट करना है, क्यों करना? आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आज आप हर तरह की बातें निकाल के उसे छोड़ देते हैं, उसे मुकम्मल करने की सोचने की तैयारी नहीं करते कि किस तरह उसे मुकम्मल किया जाए, किस तरह उसके लोगों तक पहुंचाया जाए। उस पर कोई चर्चा नहीं है बजाज भाई, सिर्फ नफरत है। और आप हिंदू मुस्लिम की बात करके बात खत्म हो जाती है, मगर जो रियलिटी है इस देश की वो हम सामने नहीं ला पाते। हम मणिपुर पे उसकी बातें नहीं करते, हम नासिर हुसैन साहब की बात नहीं करते। नासिर हुसैन साहब, आज कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप लेके आ रहे हो, आप एजुकेशन का भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये चार्ज लगाया है कांग्रेस बीजेपी पर। बोले कि आप भगवाकरण कर रहे हो और जिस प्रकार से आप भगवाकरण के साथ नफरत के जो बीज बो रहे हो वो संविधान को ही खतरे में डाल रहे हैं, कांग्रेस का कहना है। बोले कि कांग्रेस का आगे जाकर कहना है कि पहले स्टेट को आजादी था कि अपने ही हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक है, सिलेबस, वो खुद ही कर ले, मगर नया एजुकेशन पॉलिसी में पूरे चीज सेंट्रलाइज हो गया है और सेंट्रलाइज के साथ भगवाकरण भी हो गया है, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस पर थोड़ा आप रोशनी और डाल सकते हो नासिर हुसैन साहब? देखिए, मैंने आपसे कई बार बोला ये एजुकेशन को इन्होंने बिजनेस बना दिया। एजुकेशन नहीं मिला,
एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया, एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं बची, लोगों के पास जितना पैसा कम होता गया एजुकेशन उतना ही महंगा होता गया। आप देखिए आज इतिहास को मरोड़ मरोड़ के दिखाने का काम कर रहा है। उन्हें भगवाकरण क्यों बोलते हैं? आप सावरकर को पढ़ाने का काम करोगे, आप उनको पढ़ाने का, जो उनके कोई इतिहास नहीं, उनका इतिहास बनाने का काम करोगे। आज एजुकेशन को, आरएसएस की सोच को उस इतिहास के बुक में कैसे लाया जाए वो कर, जो शहीद भगत सिंह को गोवलकर बोलते थे, जिनकी कोई उनकी जो काम थी वो मुकम्मल नहीं हुई, जो वो देश के लिए कर, इसलिए वो कोई सम्मान के पात्र नहीं थे, उस चीज को ये मिटाना। शहीद आजम भगत सिंह के लिए गोवलकर का ये कहना था कि उनकी कोई काम नहीं किया है देश के लिए, कुछ ऐसा नहीं है, ये तो रिपोर्ट उनके बुक में है। तो ऐसे चीजों को वो इतिहास में लाना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं एजुकेशन का भगवाकरण करना, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, एजुकेशन के बच्चों तक पहुंचे नहीं, जो हमारी इतिहास जो है उस इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए एजुकेशन आज महंगा है। आज देख लीजिए कितने सारे आपने सेंट्रल स्कूल खोले, वहीं आपको देश में नहीं दिख रहा होगा। कितने आपने सरकारी इंस्टीट्यूट एजुकेशन मेडिकल कॉलेज खोले, कहीं दिख नहीं रहा होगा। कहीं सरकारी आपको अस्पतालें नहीं दिख रही होंगी, चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन है। क्यों हो रहा है? एम्स, देखिए कांग्रेस की सोच थी ना, आईएम आ गया, एम्स आ गया, आईआईटी आ गया, जो दिन पे दिन लोगों को तरक्की, हमने उस समय जब आप सोच के देखिए जब देश के आजाद हो रहा था, लोगों के पास ना खाने की साधन थी ना वो, उस समय भी नेहरू की सोच देखी कि इसरो जैसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जो आज चंद्रयान 3 तक हम लोग पहुंच गए। वो सोच रखना चाहिए। जब लोगों को लगता था ये पागलपन है, ये क्या है, जब देश में कुछ नहीं है, इसरो का क्या काम है, पर नेहरू जी ने कितना 60-70 साल आगे का सोचा था। तो आज देखिए हम कहां पहुंच रहे हैं। तो यही सोच होना चाहिए कि एजुकेशन उस तरह से काम करिए, उसका कोई प्राइवेटाइजेशन भगवाकरण ना हो, उस तरह काम हो कि आगे 70 साल भी हमारे जो आज की सोच है वो बुनियाद पड़े, जो 70 साल आगे डेवलपमेंट की तरफ जाए। और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है प्रदीप भाई, सिर्फ भगवाकरण है, चारों तरफ नफरत है। स्कूलों में आपने देखा होगा यूपी में, एक माइनॉरिटी से किसी को माइनॉरिटी को पिटवाया, एक दूसरे धर्म को पिटवाते हैं, दूसरे धर्म से दूसरे धर्म को ये स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। आपने यूपी का कई बार आपने न्यूज चैनलों में देखा होगा किस तरह की हरकतें हो गई है कि एक स्कूल में जहां भाईचारा था, बच्चे मोहब्बत सीखने जाते थे, वहां भी अब नफरत का बाजार सजा दिया गया है। स्कूल के अंदर एक धर्म को एक धर्म से मरवाने का काम किया जाए। ये नफरत की बीज है जो आगे चल के देश के लिए नुकसान। नासिर हुसैन साहब बनेंगे इकोनॉमिक। नासिर हुसैन साहब, राहुल जी फर्नीचर मार्केट में गए, दिल्ली में एशिया के सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट में। राहुल गांधी जी वहां के वर्कर्स से बात किए, वहां के जो कारीगर थे उनसे मिले, उनके समस्या के बारे में चर्चा किया, प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा किया। बीजेपी का कहना है, देखो ये बीजेपी का कहना है कि मोदी जी का जो विश्वकर्मा योजना है वो उस चीज से राहुल गांधी जी और कांग्रेस डर गए। देखो राहुल गांधी जी को हमने मजबूर कर दिया कि ये विश्वकर्मा जी के जो लोग हैं, जो फर्नीचर मार्केट में काम करते हैं, जो कारीगर हैं, उनसे जाके बैठ। आगे जाके बीजेपी का कहना है कि हमने 18 अलग अलग प्रकार के कारीगर को आइडेंटिफाई किया, उनको टूल किट दिए, उनको ट्रेनिंग दिया। 13,000 करोड़ का बजट विश्वकर्मा योजना के हिसाब से मोदी साहब ने अलॉट कर दिया। और इस विश्वकर्मा योजना से राहुल गांधी जी प्रेरित होकर वहां पर चले गए। तो क्या बिकॉज पहले भी मोदी जी कहा कि आप फोटो अपॉर्चुनिटीज बहुत करते हो, आपके दिल में इन गरीबों के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हो। क्या सिर्फ ये फोटो अपॉर्चुनिटी था? नासिर हुसैन साहब मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले मैंने एक बात कहा, ये लोअर और अपर ओबीसी की बात बना दी इन्होंने। विश्वकर्मा की जो बात है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि 44% वोट इनको ओबीसी का मिलता है तकरीबन देश में। अभी 2019 के इलेक्शन में 44% के आसपास, क्योंकि अभी सेंसेक्स हुआ नहीं तो पता नहीं ओबीसी कितने हैं, तो मेरा अपना अंदाजा है, जहां तक मेरे सोर्स बताते हैं कि 50% के अब ये हो, तो 44% के आसपास इनको ओबीसी का वोट मिलता है। तो ये क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें बनिया का वोट इनका फिक्स है, ब्राह्मण वोट भी क्या, प्रकाश वोट, इन वोटों को इनको लगता है ये छिटकेंगे नहीं, क्योंकि ये ओबीसी की जो अपर ओबीसी थे, यादव थे, कुर्मी थे, दूसरे उनको 27% जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन से था, वो 27% एक्चुअली रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। आज आप आंकड़ा देखेंगे तो शायद मुझे लगता है 5 से 12% से ज्यादा ओबीसी को मिला ही नहीं। वो भी 5 से 12% ओबीसी का जो आरक्षण का फायदा हुआ वो थोड़ा अपर ओबीसी को मिला, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उनको नहीं मिला है।
अब ये जो 44% जो छोटी ओबीसी, जो लोअर ओबीसी थे, उनको अपने तरफ लाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम ये विश्वकर्मा की ये करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? आप आज इलेक्शन आ रहा है तो राहुल जी क्या है, आम लोगों से मिलते हैं। आप कोविड था, आप देखिए जब तमाम लोग बीजेपी के लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, तब भी राहुल जी सड़कों पे आए, लोगों की दर्द बांटा, लोगों से मिले, ट्रक वालों से मिलते हैं, ट्रक वालों की हालात जानते हैं कि तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्योंकि वो मन की बात नहीं करते, वो दिल की बात करते हैं। वो कारपेंटर इंडस्ट्री में जाते हैं, छोटे लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी हालात क्या है, उनके दुख, क्योंकि उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो यात्रा किया, उन्होंने तमाम लोगों को देखा है कि किस तरह के लोग हालात गुजार रहे हैं। तो आप देखिए आज कारपेंटरों के पास भी गए, फल मंडियों में भी जा रहे हैं, किसानों के पास भी जा रहे हैं, इवन कुली तक के पास जा रहे थे, उनके दुख दर्द को समझे, स्टेशन पे उन्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि निचला समाज का तबका जब तक ऊपर नहीं आएगा, हम देश विकसित कैसे बनाएंगे? इनके हाथ के हुनर को हम पहचानेंगे नहीं। लेकिन एक चीज तो है नासिर साहब, एक चीज तो है, मानना पड़ेगा प्रदीप जी, राहुल गांधी जब ट्रक वालों से मिले, उन्होंने ट्रक चलाया, सीधा चंडीगढ़ तक लेके गए ट्रक हाईवे पर। साहब सोनीपत में गए, जहां पे धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, किसानों के साथ अपनी पतलून ऊपर करके बिल्कुल धान के खेत में, चावल के खेत में खुद हाथ बटाया किसानों का। और अभी ये जो कारपेंटरी की फुटेज चल रही थी, तरखानों की जो फुटेज अभी चल रही थी, अरे तरखानी भी आती है उनको, और तो और छोड़ो, that man loves working with his hands. I mean, it is so impressive. It is absolutely wonderful. The manner in which Rahul Gandhi has endeared himself to the public. जिस प्रकार आज की तारीख में राहुल गांधी को जो प्यार मिल रहा है लोगों से, बाप रे बाप, that I have not seen this kind of thing before. और पहली बार ऐसा हुआ है, ये कोई नई बात तो है नहीं नासिर साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस हैज गॉट इट्स एक्ट टुगेदर। आप इसको मतलब ज्यादा जोर शोर से नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, पूरी बात सुन लीजिए सर, आप इसको इवेंट नहीं बता रहे, आप इसको सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, इवेंट नहीं बना रहे, एंड दैट आई थिंक इज रियली ग्रेट। जबरदस्त मैसेज जा रहा है। बोलिए नाज़िर साहब। ठीक है, ये ठीक है, आज हम राहुल जी पे, कारपेंटर पे जा रहे हो, खेतों में काम करते दिख रहे हो, या ट्रक ये दिख रहा है, पर राहुल जी की आप देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र में वो कई बार आए, गरीबों के घर गए, कई बार आते हैं। आपको मनरेगा का जब उन्होंने ये लाया तो मजदूरों के साथ उन्होंने मजदूरी की, आपने देखा होगा मनरेगा में, आप जब उन्होंने ये बिल आया था लोगों के लिए, तो मनरेगा वो उस वक्त भी कुली की तरह उनके मजदूरों के साथ, एक जो आम मजदूर होते हैं उनकी तरह वो काम कर रहे थे। राहुल जी की एक आदत रही है आम लोगों से मिलना, आम लोगों की तरह जीना, क्योंकि वो भले बड़े घर में पैदा हुए हों, मगर वो जिंदगी जो बशर की है, आप देखिए आम लोगों के साथ है। उन्होंने हर घर पे हर उनके दुख को, उनके तकलीफ को समझा है, कि उन दलितों के घर में सोने से लेके हो, चाहे वो कहीं का भी हो, आप देखिए उनके हर वो खुले आसमान में किस तरह वो लोग नासावर लेते हैं, उसकी भी एहसास को उन्होंने महसूस किया है। खुले में टॉयलेट करते हुए लोगों के, ऐसा भी तो इतने सारे टॉयलेट उस वक्त बने होंगे। आप देखिए राहुल जी की जो सोच है ना, बहुत ही डिफरेंट सोच है। ये मन की बात करने से ये नहीं आएगा, जब तक आप फेस टू फेस, 1 to 1 नहीं मिलते हैं, उनके दुख दर्द को आप नहीं समझ सकते। ये राहुल जी की पहचान है। जब मजदूरों के साथ काम करते हैं, कुलियों के साथ रहते हैं, ड्राइवरों के साथ ट्रक चला, मैंने उस एक बार कहा था कि इस देश में जो ड्राइवर है ना, तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग, अब उतने परिवारों तक ये मैसेज जब जाता है तो उनकी आवाज राहुल जी बन जाते हैं, उन 4-5 करोड़ फैमिली की आवाज बन जाते हैं। ये कारपेंटर विश्वकर्मा जो, उनकी कई करोड़ लोगों तक उनकी आवाज पहुंच जाती। ये है राहुल जी की पहचान। जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चला, ना दुख देखा, ना धूप देखा, ना बारिश देखा, ना छांव देखा, वो चलते रहे और देश को समझते रहे। ये होता है राहुल गांधी। ये नहीं होता है कि टीवी के शो में आइए, मन की बात करिए और चले जाइए। आपने क्या किया है वो बताइए, आपने 9 साल में देश को क्या दिया वो बताइए। नासिर साहब, वही मोदी जी वही बोलते हैं कि हमने क्या किया 9 साल में, सबका साथ सबका विकास, आर्टिकल 370, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 रैंक 1 पेंशन, 10% रिजर्वेशन गरीबों के लिए हमने किया बिना कोई प्रॉब्लम के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी। और ये जब गिनाते हैं नासिर साहब, वो उसी वक्त मोदी साहब ये भी बोलते हैं कि
देखो, कांग्रेस को आज के तारीख में चला रहा है अर्बन नक्सल्स. अर्बन नक्सल्स आर रनिंग द कांग्रेस पार्टी. द कांग्रेस पार्टी इज बीइंग रन बाय अर्बन नक्सल्स. एंड ये जो भी आप फोटो अपॉर्चुनिटीज कर रहे हो, वो फोटो अपॉर्चुनिटीज है. कांग्रेस के दिल में गरीबों के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए, जो आदिवासी, ओबीसी और दलित सेक्शन के लिए कोई उनके पास ना प्लान है ना. ये मोदी साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है. तो इसको आप कैसे देखते हो? एक जगह मोदी साहब पूरे गिना रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, और दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस इज बीइंग रन बाय अर्बन नक्सल्स. ये अर्बन नक्सल क्या होता है सर? ये सर, ये इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वन नेशन की बात क्या है? वन नेशन जरा उन्हें बताना चाहिए. क्या अडानी की इनकम से आम लोगों की इनकम बराबर हो गई? क्या अंबानी के इनकम से आम लोगों की इनकम बराबर हो गई? वन नेशन क्या है, जरा से इसकी दलील भी देना चाहिए ना. क्या होता है वन नेशन, जरा उन्हें बताना चाहिए था, पर उस पर वो बात नहीं करेंगे. वन नेशन इलेक्शन कराना चाहते थे, क्या हुआ? क्या चल रहा है, कुछ बताइए. क्या आपने क्या 370 हटने के बाद क्या जवानों की शहादतें रुक गई? 370 आने के बाद क्या वहां पे आम लोगों की मुस्तकबिल चेंज हो गई? कि अभी 2 दिन पहले वहां के एक डीएसपी को मार दिया जाता है, पुलिस अधिकारियों को मार दिया, क्या रुक गई? एंड क्या टेररिज्म खत्म हो गई? क्या वहां पे पूरी जिंदगी बदल गई? आप ये बताइए. क्या कश्मीरी पंडित पूरे कश्मीर की तरफ लौट गए? 370 हटने से क्या क्या फायदा हुआ वो बताइए. मत 370 का राग लगाइए कि क्या है. हम आप फिर बोलते हैं ना 370 मेरा एक बहुत फेवरेट मुद्दा है, फिर छोड़िए अभी. आप बोलते और आप बताते अर्बन नक्सल. अर्बन नक्सल किसे कहते हैं? यही शोभा भारद्वाज जिनको उठा के बंद कर दिया, उन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं. ये नौलखा जी, उन्हें बंद कर दिया, उन्हें अरे उन लोगों ने समाज के लिए जो काम किया है, उनके समाज को देखिए. उन लोगों ने उस वक्त अमेरिका के नेशनलिटी को छोड़ने का काम किया जब लोग अमेरिका जाने के लिए लाइन में खड़े थे. वो ऐसे लोगों को आप अर्बन कौन होता है अर्बन नक्सल? और आप सरकार में है, आप एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बैठे, आप एक्शन लेने बैठे. कौन है? आप नाम डिक्लेयर कीजिए अर्बन नक्सल है, उस पर कार्रवाई करिए. कांग्रेस ने रोका है, किसने रोका है? आप बोलते हैं वन टैक्स से जीएसटी ऐसा लाए कि लोगों को गरीबी रेखा में डाल दिया. कौन सा? आप बोलते 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए. कौन है वो 13 करोड़ लोग? उसका डेटा दो. आपने कहा था किसानों की इनकम आय डबल हो जाएगी. क्या किसानों की आय इनकम डबल हो गई? आप उस पर बात करो. आपने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे. क्या आपने उस हिसाब से 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दी? आप आज 70,000 72,000 आप इस तरह से आप खुद से एडवर्टाइजमेंट के लिए आप नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटते हो कि अब लगता है पोस्ट ऑफिस भी बंद हो गया. अब पोस्ट ऑफिस से लेटर भी जाना बंद हो जाएगा क्योंकि नियुक्ति पत्र भी यही बांट रहे होंगे. 70-72,000 तो 18 करोड़ नौकरी के बदले आप 70-72,000 या 1 लाख 2 लाख की बात करने लग जाएंगे. तो इनकी सिर्फ बातें हैं, कुछ उस पर बात नहीं हो रही है कि हमारी महिलाओं की. आपने महिलाओं की बात की, क्या महिलाओं की कितनी कहां रिजर्वेशन मिल गया? तो ओबीसी, आपने ओबीसी को क्यों छोड़ दिया? ओबीसी को क्यों नहीं उसके अंदर शामिल किया? आप महिलाओं के लिए अगर भला कर रहे थे तो तमाम महिलाओं के लिए भला करते ना. आप कोटा में कोटा क्यों नहीं दिया? आपको उनका वोट चाहिए पर उनका भला नहीं चाहिए. आज 90 सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसमें सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी के आते हैं. बाकी क्यों नहीं 27% आए? क्यों 12% और 5% ओबीसी को हक मिला? क्यों आज तक? आज तो ओबीसी के रिजर्वेशन को आप खत्म करना चाहते हैं ना. तभी तो आपने महाराष्ट्र में आज देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन को कितने दिनों से अटका के रखा है. आप नहीं चाहते कि ओबीसी का मसला हल हो. तमाम जगह आप देखिए कॉर्पोरेशन का इलेक्शन रुका पड़ा है. क्यों? सिर्फ ओबीसी की वजह से ना. आप चाहते थे, ये कर सकते थे, सिर्फ ओबीसी के साथ छलावा है. महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, देश की भी जनता देख रही है कि ये ओबीसी के साथ क्या कर रहे हैं. नहीं तो ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन में आप 27% डाल देते और 2039 तक आप उनको वेट नहीं कराते. आप इसी 2024 में दे सकते थे, पर आप उनको रिजर्वेशन का फायदा देना ही नहीं चाहते. सिर्फ उनका वोट चाहिए क्योंकि मंडल कमीशन से आपको जो फायदा मिला उस फायदे को आप उठाए रखना चाहते हैं. अगर आप ओबीसी में अगर आप पिछड़ा को भी लड़ाना चाहते हैं, सिर्फ उनके वोट से आप सत्ता में रहना चाहते हैं, पर ओबीसी समाज just look at that footage. Wow, can we have that? That's Rahul Gandhi actually lifting up a suitcase on his head. Oh my God, that is fantastic. That is really fantastic. I've never seen anyone do that before. I have never seen a politician do that before. आज तक मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा ये करते हुए. This is absolutely fantastic. जी नासिर भाई बोलिए. ये जन नेता की पहचान होता है. देख लीजिए आप, इसमें कोई कार्यकर्ता दिख रहा है? इस पर
सिर्फ आम लोग हैं, वो लोग हैं जो Oh wow, look at that. Just look at that. सामानों को उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग हैं ये बैठे। ये वो लोग हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके दुख दर्दों को समझाए, उन कुली भाइयों के दुख दर्दों को समझाए। इसको बोलते हैं जन नेता। ये है जन का नेता, ये है देश का प्राइम मिनिस्टर आने वाला। लेकिन ये बताएं नासिर साहब, ये नहीं है के जो महिला आरक्षण ये आप देखिए, एक मिनट बजाज भाई, प्लीज बहुत अच्छा। मुझे आप क्योंकि दिल्ली की बात चली तो मुझे केजरीवाल जी याद आ गए। आप देख लीजिए, मैं इंडिया अलायंस के पार्टनर है, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गया। सुखपाल सिंह जी, आप हमारे कांग्रेस के एक एमएलए हैं पंजाब में, वो हमारे किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो आए दिन किसानों की आवाज उठा रहे थे पंजाब में कि उनकी सुसाइड हो रही है, उनको बीज दाम पे, सही दाम पे नहीं मिल रही है उनकी आवाज, तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर दिया। आप बताइए मोदी जी और उनके काम में क्या फर्क रह गया कि आप उनकी ओपोजिशन की आवाज नहीं सुनना चाहते? किसानों की आवाज वो उठा रहे थे, उस आवाज से आपको तकलीफ हो गई, आपने उठा के उन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया, और वो भी ड्रग्स केस में। जो मैं कहता हूं ना, ये सुनिए, ये जो आज कुछ पत्रकार यूट्यूब में बहुत फेमस भी है, आज जो लगता है कि मोदी विरोधी है, पर मोदी जी को एस्टेब्लिश करने वाले भी वही पत्रकार थे। मुझे याद है अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो अन्ना आंदोलन में इतने भक्त थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये देश के लिए क्या कर रहे हैं। वो पत्रकार उस वक्त उस कांग्रेस की डिविजन करती थी और अन्ना हजारे को प्रमोट करने का काम कर रही थी, उसमें से वो पूरा मास्टरमाइंड कोई काम कर रहा था, तो ये केजरीवाल जी काम कर रहे थे। आज वो पत्रकार अपने आप को, आज मुझे लगता है वो अपने को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। मैं किसी एक पत्रकार का नाम लेकर उस पर कॉमेंट नहीं करना, पर उन लोगों ने उस आंदोलन को जो प्रमोट करने का काम किया स्ट्रीम मीडिया में, आज उसकी सजा ये देश भुगत रहा है। आज देख लीजिए किसानों की हालात पंजाब में दर्द होती जा रही है, एक शादी में हजारों करोड़ खर्च हो जा रही है, और किसानों, आज पंजाब पे कितना कर्ज हो गया है, आज केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए पंजाब में कितना। यही बात सुखविंदर सिंह जी उठा रहे थे, तो ये तकलीफ हो गई, कितना कर्ज क्यों है, तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। ये हमारी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला इसकी हम इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी जांच करेंगे। तो हम इसके, तो नासिर साहब ये बताएं, एक जनप्रतिनिधि को आप इस तरह से जेल के सलाखों में डालोगे कि वो किसानों की बात करता है, आपके करप्शन की बात करता है, आपके हवाई जहाज खरीदने का विरोध करता है, तो आप उसे उठा के जेलों में डाल दोगे? ये देश। Now here we must say that the Aam Aadmi Party government in Punjab has said that the gentleman concerned, Mr. Sukhpal Singh of the Congress, was involved in the drug trade. That's what they say. ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दैट टाइम, यू रिमेंबर, आप सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई गिल्टी माना था? सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें सिर्फ जांच के लिए बोला था, कोई उनका चार्जशीट में नाम नहीं था, सिर्फ एक ये आपने उठा, क्योंकि किसानों की आवाज उठा रहे थे, इसलिए आपको तकलीफ हुई ना। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन है, जो पंजाब का सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन है, उसके खिलाफ आज तक आम आदमी पार्टी ने जरा भी एक्शन नहीं लिया। आपको भी मालूम है वो कौन है, हमें भी मालूम है। क्यों नहीं? बादल फैमिली के खिलाफ तुमने एक्शन लिया? मैं पूछता हूं, बादल फैमिली के खिलाफ लड़के आए थे ना, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं किसी बीजेपी लीडर के उधर लिया? मुझे नहीं मालूम इंडिया अलायंस में उनके साथ क्या होने वाला नहीं होगा, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस केस के लिए हम पूरी पार्टी उनकी मुखालफत करती है कि उन किसानों की आवाज को तुम कैसे बंद कर सकते हो। जब ये किसानों की हमदर्द बनते हैं, किसानों का जब बिल पास हो रहा था, उसके वोट, किसके वोट में इन्होंने, किसने वोट किया था? बीजेपी के समर्थन में, किसानों के बिल के विरोध में क्यों नहीं वोट किया? उनके समर्थन में क्यों नहीं वोट किया? आप बीजेपी के साथ खड़े थे संसद में उस दिन, उस बिल के साथ खड़े थे आप। तो ये आवाज जब उन्होंने उठाया, पूरे पंजाब को बताया, तो इनको तकलीफ होकर उनके जेल के पीछे डाल दिया गया। ये न्याय, ये और उनमें फर्क नहीं है। ये लोकतंत्र, उनके लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाती है। जब हम उनके लोग, अभी कई लोग उनके लोग जेलों में हैं, तो तब लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचती है, लोकतंत्र खत्म हो गया। आज कौन सा लोकतंत्र वहां एस्टेब्लिश कर दिया आपने? यह पूछना पड़ेगा। आपके पास आते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ये सवाल जरूर कीजिएगा। जी, ये बताएं साहब, ये बताएं कि जहां तक के महिला आरक्षण का प्रश्न है, आपने खुद बोला कि अगर उसको लागू करना था तो एकदम फौरन भी लागू कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी ने ये कहा है कि भाई उसको अगर फौरन लागू करते हैं तो कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा उसके खिलाफ, और जब तक सेंसस नहीं होगा और डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगी तो वो कोर्ट का सीधा स्टे ऑर्डर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर?
नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं वो, फिर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने डेलिमिटेशन इसलिए रोक लगाया था कि जन पॉपुलेशन के हिसाब से डेलिमिटेशन नहीं होना है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का ये 50 साल का झगड़ा है। साउथ की पॉपुलेशन कंट्रोल में थी और नॉर्थ की पॉपुलेशन हायर थी, इसके ऊपर रोक है। तो आप इसके लिए नहीं रोक है कि आप इसको पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं लगाना, आप चाहिए तो जाति जनगणना करा के कर सकते हैं, और 2021 का आपके पास पड़ा है ना, उससे कर दो ना। 2014-11 का पड़ा है ना आपके पास, उससे करो ना। क्यों नहीं करते हो? उसको सेंसेक्स लागू कर सकते हो ना आप। आपको करना ही नहीं है ना। 2026 का रोक सिर्फ जन पॉपुलेशन के हिसाब से लगा हुआ है। बजाज भाई, ये लोग बहका रहे हैं लोगों को, ये बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिमागों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सिर्फ डेलिमिटेशन इसलिए रोक है कि जन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करना है, नहीं तो साउथ इंडिया के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ जाएगी तो इनकी हमेशा इधर ही सत्ता आ जाएगी, उनको फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको, जिनको रिवर्ट इनाम मिलना चाहिए था, एक तरह से अगर हम इस तरह से डेलिमिटेशन करेंगे तो उनको हम सजा दे रहे हैं ना। इसके ऊपर 2026 तक रोक है। आप जो सेंसेक्स है उस पर आप कर सकते हैं, बट इनको नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं 2039 तक ये इसी तरह गुमराह करके ये चुनाव लड़ेंगे और इसके ये पूरी दुनिया में मार्केटिंग करेंगे। बाकी इससे हमारे आम महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ताकि हमारी महिलाएं समझ नहीं है कि ये कौन सा इन्होंने झुंझुना बजाया है, क्योंकि 27 को उसके अंदर शामिल नहीं किया, बीजेपी को शामिल नहीं नासिर किया। हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है कि 27 साल आप सिर्फ सोचते रहे। 27 इयर्स कांग्रेस लेड, और कांग्रेस ने सिर्फ सोचा, मगर हमने 2 दिन में इंप्लीमेंट किया। जैसे मोदी साहब का कहना है, बीजेपी का कहना है, विद इन 2 days वी हैव इंप्लीमेंटेड एंड वी हैव ऑलवेज स्टूड। हमने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है। मोदी जी गिना रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं कि जन धन जब हमने अकाउंट खोले थे उसमें करीबन 56% महिलाओं को टोटल महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको इन्वॉल्व किया हमने। मोदी जी आगे जाकर कह रहे हैं कि 11 करोड़ शौचालय जो हमने बनाए उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया? महिलाओं को हो गया, महिलाओं को हो गया। और कुछ भी करो, कैसे भी करके 2026 तक ये इंप्लीमेंट ही करेंगे। तो ये 27 साल आप सोचते रहे नासिर हुसैन साहब, आप सोचते रहे। मोदी जी का कहना है 2 दिन में इंप्लीमेंट कर लिया, लोकसभा भी पास, राज्यसभा भी पास। क्या ये नकार तो नहीं सकते ना? नहीं, ठीक है, 11 मैं कहाँ नकार रहा हूं, मैं इनके बात का जवाब। 11 करोड़ टॉयलेट ये बोलते हैं हमने बनाई है, कौन सी टॉयलेट बनी है उसकी आपने तमाम मीडिया ने जब देखा तो बिना दरवाजे की ही टॉयलेट है। एक साथ ही कई सारे टॉयलेट बना दिया गया जो कोई पार्टीशन नहीं है। ये पूरा करप्शन है। आप इस पे भी टॉयलेट घोटाला, ये घोटाला निकलेगा तो ये भी एक घोटाला ही होगा, क्योंकि जिस तरह अभी मध्य प्रदेश में एक शादी घोटाला हुआ ना, कि कई लोगों की फेक शादी करा दी थी और वहां सामानों को लेके भाग गए, तो इसी तरह एक घोटाला ये भी मिलेगा, जिस तरह वेपम घोटाला था, जिस तरह ये भी। और रही बात ये जो बार बार कहते हैं महिलाओं के साथ न्याय, महिलाओं के साथ आप कभी न्याय कर ही नहीं सकते हो। आप बताए उन्नाव में एमएलए इनका रेप करता है, उसके साथ ये खड़े रहते हैं, बोलते महिलाओं के साथ है। इनके मध्य ब्रिजभूषण इनके महिलाओं खिलाड़ियों के साथ असत बात करता है, उनके साथ क्या क्या जलील हरकत करता है, ये उनके साथ खड़े रहे, उनको पार्टी से निकालने तक की हिम्मत नहीं हुई, उन पे कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हुई। वो बात करेंगे महिलाओं के न्याय के लिए। अरे महिलाओं के न्याय, हमने 27 साल, मैंने एक दिन कहा था कि क्रांति कोई एक दिन में नहीं आती, क्रांति आने में टाइम लगता है। तो 1951 में हमारा कराची का अधिवेशन हुआ था, वहां हमने महिलाओं को वोट देने का राइट लाया था। हमने हमेशा महिलाओं के फेवर में काम किया। आप देखिए ना, पहला कोई महिला प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस से बनी, पहला राष्ट्रपति बनी कोई तो कांग्रेस से बनी, पहला सीएम बनती है तो कांग्रेस से बनती है, पहला लोकसभा स्पीकर बनती है तो कांग्रेस से बनती है। हमने महिलाओं के लिए जो काम किया उसे तुम भूल नहीं सकते हो। आप ओबीसी के, हम अभी मांग रहे हैं महिलाओं को ओबीसी में तुम लेकर आओ, तो क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो आप सगुफा इधर उधर की बात कर रहे हो, ये नहीं बताते हो कि कश्ती कहां डूब रहा है, आप सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हो। तो इससे हम चुप नहीं होने वाले। हमने जो मुद्दा उठाया है, इस देश की ओबीसी महिलाएं देख रही है, उन्हें 27% रिजर्वेशन का फायदा कैसे मिले, ये उस पर बात करें। ये ना करें महिलाओं के लिए न्याय। ये महिलाओं के न्याय है कि आपने गैस सिलेंडर 1200 में जो आज बता रहा है
कि जो एक बार सिलेंडर भराती है वो महिलाएं फिर दोबारा भराने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। ये महिलाओं के लिए आपने न्याय किया है। अरे एलआईसी का प्रीमियम जो आज देख लीजिए लोगों का लैप्स कर गया, 12 करोड़ लोगों का, वो क्यों लैप्स कर गया ये बताना चाहिए सरकार को कि महिलाएं क्यों लैप्स कर गई, कि वो प्रीमियम भरने का उनके पास पैसा नहीं है। सेविंग अकाउंट से लोग जो थोड़ा बहुत सेविंग उसको भी खत्म करके लोग अपने खाने में खत्म कर रहे हैं, दूसरी कोई खर्च नहीं, सिर्फ खाने और जीने में खत्म हो जा रही है। ये महिलाओं के लिए न्याय हो रही है? कौन सा महिलाओं का न्याय कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। ये भारतीय जनता पार्टी को, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। क्या महिलाओं की तकदीर बदल गई? क्या महिलाओं को मिल गया? एक मामूली ओबीसी रिजर्वेशन देने में आपको डर लगता है? मैंने अभी बताया ना, सिर्फ 5% ओबीसी का फायदा लोगों को मिल रहा है, चाहे ज्यादा से ज्यादा 12% होगा, 27% उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप वो भी न्याय नहीं दिला पा रहे हो। आप गिनती गिनाते हो कि हमारे पास महिलाएं, अरे आप 300 सीट जीत के आओगे तो 42 आपकी महिला जीत के तो आएंगे, परसेंटेज फिर भी नहीं आपका 27% बनता है, 33% बनता है। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप महिलाओं को देना नहीं चाहते। आप बताइए, इतने सारे स्टेट में इनकी सरकारें, कहां महिला सीएम है? आप बताइए। सीएम, इनको कुछ महिलाओं को न्याय नहीं करना है। जिससे क्वेश्चन करिए तो ये हिंदू और मुस्लिम और इनकी और उनकी बात करेंगे, सच्चाई पे ये बात नहीं करेंगे। और जो भी महिला मुख्यमंत्री रही उनको तो बाहर कर दिया गया। उमा भारती जी बनी थी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अच्छा नाम लिया। उमा भारती इनके खिलाफ खड़ी हो गई ओबीसी के। वो बोलती है मेरे लाश पे गुजरना पड़ेगा फिर भी मैं इसे लागू नहीं करने दूंगी जी। आप बताइए सुषमा, आप अभी अच्छा याद आ गया मुझे, ओबीसी आपने बात की महिलाओं के, तो महिलाओं के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी खिलाफ नहीं थे इस बिल के? लाल कृष्ण आडवाणी खिलाफ नहीं थे इस बिल के? या बताइए जसवंत सिन्हा खिलाफ नहीं थे इसके? या सुषमा स्वराज खिलाफ नहीं थी? कौन नहीं खिलाफ था? इस भारतीय जनता पार्टी को तो हक नहीं है बात करने का। इन्होंने खुल के मुखालफत किया था, ये बोल इन्होंने आने नहीं दिया। अरे हमारे 2-4 घटक दल ने खिलाफ किया होगा, मगर तुम तो सबसे बड़े ओपोजिशन पार्टी थे, तुमने क्यों मुखालफत किया उस रिजर्वेशन का? इनफैक्ट अगर बीजेपी उस वक्त सपोर्ट कर देती तो उसी वक्त पास हो गया होता, बिल पास होता जी। क्यों नहीं पास? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है पर अडवाणी जी मौजूद है। अडवाणी जी को जवाब दीजिए, उन्हें निकालिए और उनसे पूछिए क्यों नहीं बनने दिया। सुषमा स्वराज जी नहीं है मगर आज अडवाणी जी तो है, जसवंत सिन्हा है, उनसे पूछिए। नहीं पूछेंगे उनसे। नासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इनके पास कुछ है नहीं तो नफरत का मजाक सजा दो, एक कम्युनिटीज को लड़ा दो, मंदिर मस्जिद कर दो, जातियों को बांट दो, लोअर ओबीसी अपर ओबीसी कर दो, तो तमाम यही नफरत की बाजार है। आज भी रोजगार पे बात नहीं कर रहे, किसानों पे बात नहीं कर रहे, हम इन्हीं तीनों मुद्दों पे रोज बात करते हैं। हमारे तमाम प्रवक्ता यही बात उठाते हैं, इनकी मुस्तकबिल को बदलो। किसानों की मराठा रिजर्वेशन इज स्टिल पेंडिंग, क्यों छोड़ रहे हैं? एंड मराठा रिजर्वेशन इज स्टिल पेंडिंग। आज देखिए ना ओबीसी का, आज देखिए महाराष्ट्र में इतना आंदोलन हो रहा है, इतना आंदोलन बढ़ता जा रहा है। रेलवे की तो लोग स्ट्राइक में जाने की बात कर रहे हैं, तो सीएम साहब मिलने की बात कर रहे हैं कि हम बोलते हैं ओबीसी कोटा खत्म नहीं करेंगे। तो तुम ओबीसी का कोटा दे कहां रहे हो जो तुम खत्म करोगे? मैं अभी कहा ना, सिर्फ 5 से 6% को फायदा मिल रहा है, 27% दो। कौन कौन से डिपार्टमेंट में 27% उसका लिस्ट निकालो, दो। हम वो सवाल उठाते हैं तो इनको तकलीफ होती है, तो हमें बोलते हैं अरे हमारा सर्टिफिकेट हमें चाहिए नहीं, हमारा सर्टिफिकेट आपकी ही नेता यूनाइटेड नेशन में बोल के आती थी। जब 47 में हम आजाद हुए तो पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद होता, हम कहाँ है रुआ? आप सुषमा स्वराज का वो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, रिकॉर्ड में है। तो आप अपने ही बातों से अपडेशन करते हैं कि हमने IIM बनाया, इसरो बनाया, क्या क्या बनाया। एक हजारों कंपनियां है, एक लिस्ट हो तो मैं बताऊं, इतनी है कि मैं आपको भेज दूं तो इनको दिन भर पढ़ते। अरे ये जब बेचने जाते तब मालूम होता अच्छा ये भी कांग्रेस ने बनाया था, अच्छा ये भी कांग्रेस ने। तो ये बेचने में भी इनको पता नहीं आ रहा कितनी कंपनियां बेची है और कितनी बची है। इतनी कंपनियां हमने बनाई है, तो ये एक भी आप देख लीजिए सरकारी कंपनी बनी क्या 2014 के बाद? एक बनी हो तो नाम बताइए, एक कंपनी का नाम नहीं बता सकते। कितनी सरकारी कंपनियां इन्होंने बनाई है, कितनी पब्लिकों की, या बैंक को, जितनी सरकारी बैंक उनको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेते का काम कर रहे हैं। वो नहीं हो रहा है तो उसको बेच दो, मर्ज कर दो। अरे क्या है, जब वो बैंकों के दरवाजा धन्ना सेठ के लिए थे तब इंदिरा जी ने उन गरीबों के लिए पूरे देश में बैंक का दरवाजा खोल डाला। आप बैंकों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। राइट, वील टॉक अबाउट दैट लेटर। नासिर साहब, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन अगली बार आपके साथ 1.5 घंटे का शो करना पड़ेगा सर। बहुत मजा आएगा, जबरदस्त। और वो लेकिन करेंगे जब आप हमारे ऑफिस में आएंगे, यहाँ बैठ करके हम चाय समोसा कॉफी पियेंगे।
जी, थैंक यू सो मच। आप इनवाइट करें, मैं पक्का हूँ। अरे आइए, जब मर्जी आइए सर, सीख कबाब भी खिलाएंगे। चलिए आइए, थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। Right, and I've just come to know, by the way, Pradeep ji, this is really and truly wonderful. In the Asian Games, hockey, India just defeated Pakistan by 10 goals to 2. That is 10 to 2. I don't believe this. It's laughable. Is it real? I mean, I don't know. Must be real. It's on Twitter. Pakistanis are not playing in the field or what? They don't have the strength to run across. I don't know. 10 to 2. Maybe all of them are doped. I have no idea. I mean, I don't know. It says 10-2. The score is 10-2. I mean, it's so. This is amazing. This is absolutely amazing. How did that happen? 10 to 2 means they are not working at all on the field. Yes. they are stationary, or they can't move at all, or probably Pakistan is going through some dire straits where Maybe they haven't eaten. for days. 10-2. Oh God, this is absolutely terrible. So our boys avenged the defeat of the 1982 Asiad, where we lost 6-1 to the Pakistanis. We've just defeated them 10 goals to 2. Right. And at the moment with us from the NCP, we have Dr. Suresh Malhotra. Suresh ji, namaskar. Namaskar. Dr. Saab, कैसे हैं? Namaskar. That's fine. First of all, hearty congratulations to the hockey team. Yes. The 10-2, that's a great win. 10-2. I still don't believe it. Oh God. That's a great win. We need to be really proud about. So that's a very good news. And, Absolutely. And our squash boys have also won the gold medal. Again, we defeated Pakistan in the final. So That's great, that was that's kind of great. nice. So heartiest congratulations. India Yes. is going ahead in sports, at least. Fantastic. Really and truly And, fantastic. Belated happy birthday to you. Oh, thank you, ma'am. Thank you. That was quite some time back. That was 5 days ago. Yes, I Thank know, you but very there much. I communicated with you now. So Yes, so it was my 105th birthday, and I'm so happy. Thank you. okay. He's seen the imbalance. And by the For the way, imbalance. so now it is quite apparent, irrespective of anything else, whether Mr. Sharad Pawar goes and visits Gautam Adani or he doesn't, as Mr. Sharad Pawar has always said that, listen, we are not against any industrialist. We are not against business. Mr. Adani is a friend of his, Mr. Mukesh Ambani is a friend of his, Mr. Ajit Gulabchand, of course, is a family friend of his, and so on and so forth, that he doesn't believe in personal vendetta against anyone. But it is also true that it is the Sharad Pawar glue that binds the India alliance together, his maturity and balance. But do you think, considering the way things are going now, this will continue, the India alliance, or do you think it'll all break up? No, India 11 will definitely continue. See, Sharad Pawar ji, as you said, he is, personal relationships are different, and personal, your opinions and your thought process is different. And secondly, then he's a khasdar, so policy making is also their forte. So they also have to meet everybody. They also have to understand the business part, how the industry is working, how things are going on. According to that, they can have some more good suggestions as to how to improve, how to make India better, at least in policy making, which they can do, No, Dr. Malhotra, don't you think, as Bajaj Saab said, this is a core issue where the Congress is concerned. Congress, Rahul Gandhi, he has staked everything in this particular issue. In the parliament, he had to face such a lot of brunt when he said, we want a JPC against Adani. That's a core issue for the Congress. They said 20,000 crore जो पैसा है अडानी जी के पास वो किसका है? Is indirect reference to Narendra Modi ji. So this is a core issue for them. Now, we are talking about alliance, the alliance dharma, the dharma of an alliance. The major party which leads the alliance has a core issue, and Pawar Sahib is against that. Now I'm talking about the entire alliance. Sanatan Dharma khatre mein hai, and you got DMK having a different tone. Then you got Aam Aadmi Party. The third is Aam Aadmi Party versus the Congress, where you arrest a congressman from Punjab on drug charges on a backdated case. Now, how is this alliance dharma, Dr. Malhotra, going to work? Because you need to have a united, cemented opposition.
Yeah, we have united cemented opposition, but that is on the main जो मुद्दे है, बेरोजगारी है, जो गरीबी है, so all those major issues will be tackled by them. See, first of all, there is no major party in the India alliance. All the parties are equally important. So some of the thought processes may be different, but the basic thing, the main thing, that how BJP is how BJP nation कैसे चला रहे हैं, उसके against, so everybody will stand together. They have to stand together. There is no second thought about it. If 2020 to 24 May, if they want to do have some have to make a change, they have to stand together, and they are all matured enough to know that they have to come together. And secondly, there something like that Sanatan Dharma के बारे में I would like to say one thing, that what they meant was not actually the word Sanatan Dharma as the rule. What they meant was Sanatan Dharma as to the BJP as well as the RSS, their mentality. That I think that thing was focused on them, because as we see that in Tamil Nadu, in South, the Hindu Dharma is well respected. There is no question. I would say that the temples over there, they are the best looked after. The Hindu also, all majority of the people, they vote for DMK. So I don't think that was really that Sanatan Dharma. That word was, I think, used differently with a different meaning. And then BJP has caught on that, and they are trying to make a election, campaign against that. They're using it for, criticizing. Just like what they tried in Karnataka with Hanuman. Yeah. With Bajrang. Yeah, exactly. So, as we all know that, there is majority, and our people all love the party. लेकिन जहाँ तक एनसीपी का प्रश्न है मैडम, उसके बारे में क्या हो रहा है अभी? Because Ajit Dada Pawar claims that it is his party, the symbol is his, everything is his. See, claiming, saying is something that is a very different thing. As you all know, as everybody knows, all the sub Janta Janardan, everybody knows that NCP is Pawar Saheb. NCP was started by Pawar Saheb. NCP, the whole idea of NCP is Pawar Saheb. And as you say, the logo, when we talk about the logo is a clock. And Pawar Saheb made a very progressive party. And the logo, the clock itself denotes that a clock never, clock always goes ahead. So that is a progressive party. And that is Pawar Saheb ki vichar sarni waisi hai, progressive hai. And I would say that Pawar Saheb is the battery of that clock. If Pawar Saheb is not there, the clock will stop. That everybody knows that. And for 50 to 60 years, Pawar Saheb has done great work. He has connected with the people. Lok Majhe Sangati. If that book is also so famous, how can anybody else do that work? And in 2024, this will be evident. People are with Pawar Saheb. As I've always said, that whenever there are big sabha hoti hai, itni gardi aa jati hai, itne log aa jate hai. See, with the herd mentality, some karyakartas have gone with these people. And also, see, when Ajit Dada went, initially he said no, he wants to become a Pradesh Adhyaksha. Okay? Afterwards he said no, he is the national president. So what is this? ये बातों में ही इतनी विसंगति है, or was it was a plan before? So then people come to know that what is this? So people. Dr. Malhotra, you are using what Ajit Pawar's statement once he talked when Raj Thakreji's Manse. He gave an example that Manse has only one MLA. अगर वो MLA इस तरफ आएगा, the entire Raj Thakre's party will go to their MLA or what? That was a question posed by Ajit Pawar in a press conference. He was telling everybody similarly, एक MLA या कुछ जाने से पूरा party doesn't come beside. And today you are using the same thing against him. You are using same Ajit Pawar statement, and probably you are talking to the election commission saying that look, he is claiming the party and the symbol, whereas this was his statement. He is giving this statement of MNS. Are you really using it, or is just talk going on across, you can say, political mongering? No, this is what we feel, that how can he claim our the symbol that he cannot do? As you said, you had to prove a dispute. Initially there was no dispute as such.
They have gone for their some agenda. They wanted to go and join the Satta. They wanted an easy way out. They didn't want to fight for the people who are oppressed. They didn't want to do that. So it's obvious Pawar Sahib is for the people. He is fighting for the people. Supriyata is fighting for the people. So naturally people know what is it. So definitely the votes and everything is going to go to Pawar Sahib. He is the one, NCP. He has started NCP. How can anybody else make a claim on that? And not only that, but the only thing is that they do say that Mr. Pawar is too old. That's what they are still saying. Old, I mean, whatever it is, age is a different thing. But you see the activities. I think Pawar Sahib is so active. In fact, more active than any of us. He's out in the morning. He's here, he's there, and giving the speeches, holding the meetings. He's extremely active. लेकिन जहाँ तक के छगन भुजबल जी का सवाल है, छगन भुजबल जी ने खुद कहा कि वो तेलगी केस में मैं अकेला जेल क्यों गया? Now what does that mean? That's what he says. He can say anything, anybody can say anything, but what is proved, that is most important. Anybody can put the blame game. Once people go in BJP side or people go that side, they start blaming others. That is a common thing. They say the NCP was a naturally corrupt party and things like that. Where is it proved? Supriyata had said, go ahead, prove something. Don't just talk. दुरुस्त बात. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. The BJP says 27 years, you and your alliance, the Congress-led alliance, which you call India Today, and the BJP says India Alliance. They said you just thought about it 27 years. You did nothing about it. आपने कुछ नहीं किया. आप सिर्फ बोलते रहे और देखिए मोदी साहब ने 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पास करके इसको अधिनियम बिल पास कर दिया. Now he says your lip service to women was just a lip service, but Modi ji has implemented and he has been continuously working for the upliftment of women, whether it's small things from Har Ghar Nal Se Jal, Shauchalay, Jan Dhan accounts. Modi ji has always done it for the woman. Now how can you also agree to this BJP's accusation that your love for women only lip service tha? Dr. Definitely not. Definitely not. It was long time back that Devi Gowda ji had started the whole thing. It was Pawar Sahib in the Maharashtra Mahila Arakshan was started by Pawar Sahib. Who thought about it? The Congress, Rajiv Gandhi, Pawar Sahib, they all started. The whole idea was theirs to give some sanman to ladies. Indira Gandhi ji also, there was a man given to the lady. And what happened in 2008, who was the one who sort of stopped this Arakshan in Lok Sabha? Who did not pass it? It was BJP. It was BJP people who did not allow this to get passed. So at that time, how can you say that? And what he has now got it passed after so many times, so many people. We had so many different mohims going on that we want this bill to be passed. We want the bill to be presented in the Rajya Sabha. After so many years, he presented that, and that also with a condition of the census, condition of delimitation. How is it going to be? He might have done it now because the elections are coming near. So just it looks nice that there's something has been done for the ladies. But when will it come into force? After the census, that will be 2026, around that. 29, ma'am. Yeah, and so it will. No, the census will happen then, and then 2029 it will come into force. Yes. So what is the idea of it? Okay, it has got passed, but then why? Notbandi was something which he could have done immediately. He did it immediately. Then why can't this be done? Why so many difficulties in just getting it into force? So these are things just to say. And what you talk about Shauchalaya and what about the other things and all, isn't it a basic need of the human beings? What is to glorify these needs? What is to glorify that he has done something for that? And we don't even know that what are the numbers and how many really have been done and what is really happening. We really don't know how many things have really happened. You know, Narendra Modi ji, the Prime Minister Modi talked about the Vishwakarma Yojana. He said, look how we are, actually talking and walking the talk also. He says 13,000 crores have been allotted to Vishwakarma Yojana. He says that we have identified 18 different types of karigari, the workers, 18 different type of carpentry, and we are providing them toolkit, we are providing them training.
and the success of the Yojana, that is Vishwakarma Yojana, has made the opposition leaders go and visit furniture market. They say Rahul Gandhi ji, your partner, alliance partner, was forced, compelled by this success of this Yojana to visit the biggest furniture market in Delhi and Asia, in Delhi, and talk to the workers, interact with the workers, which Narendra Modi ji say photo opportunities. The opposition is only talking and doing photo opportunities, whereas I am the only person. Narendra Modi is the only person who's really doing for the poor and downtrodden. Can you agree with him, Dr. No, I Manoj? I definitely don't agree to that. Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, Supriya Sule Tai ji, a lot of other people of UPA, they have always been doing this. They have always been going and meeting the people. They have always been going on the ground, meeting the small people. Rahul Gandhi, so not this year, last year, he went to the farmer, houses of the poor people. He had food over there, and he's meeting the farmers. He's met not only the furniture people, he's met the coolies, he's met the, so many different, smaller groups. And even Supriya Tai, if you see her Twitter account, she's been always, every day she's been going and meeting somebody and encouraging everybody. Even Rahul Gandhi, when the Manmohan Singh, they were in power, even that time he was doing that. So that is the way these people are. See, in India, the parties who are in India Alliance, they have it in their DNA to do this, be with the people. As I said earlier, Sharad Pawar ji, Lok Majya Sangati, these are people's, people's leaders. So they are bothered about how the people are, what are the people, जो लोगों का प्रश्न कौन से है, जनता के प्रश्न क्या है, तो वो सब जाके वहाँ बात करते हैं, वहाँ से वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं. ये मोदी जी has done it. He just makes a big start, makes a big show, big show that okay, something has been started, but how many of? लेकिन मैम अभी तक ऐसा है, डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर साहब अभी तक ऐसा है कि ये जो आप जिसको डिस्क्राइब कर रही हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट है अपने बीजेपी की, अभी तक उसने काम किया है ना, मतलब एग्जैक्टली काम कहाँ किया है? जो दो इलेक्शंस हो गए, उसमें मैनिफेस्टो की लिस्ट जो है, आप वो मैनिफेस्टो की लिस्ट हाथ में लीजिए, उसको टिक करिए कि वो मैनिफेस्टो लिस्ट में से कितनी चीजें हो गई है. स्टार्ट तो बहुत हुई होगी, बट जो कंप्लीशन में हो गई है, एटलीस्ट ना तो कंप्लीशन नहीं, बट एटलीस्ट इट हैज प्रोग्रेस समवेयर. नहीं, वो जब उनसे वो बात करते हैं तो वो G20 की बात करते हैं, बाकी सब ऐसा तो नहीं है. देखिए साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि देश ने प्रोग्रेस नहीं करी है. GDP हैज ग्रोन, ऐसी बात नहीं है. वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बाय नेक्स्ट ईयर, प्रोबेबली बाय अप्रैल में, वी विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. वी वुड हैव ओवरटेकन जर्मनी. ऐसी बात तो नहीं कि नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है. तो यू मस्ट अप्रिशिएट, एज मिस्टर शरद पवार ऑलवेज सेज, यू मस्ट अप्रिशिएट wherever something good has happened. I agree. Unemployment is rampant, there is no doubt. Manufacturing has come down. जो small units हैं बेचारे जरा कम हो गए हैं, लेकिन in some areas we have grown. Wouldn't you agree, Dr. Malhotra? Yes, I agree in some areas. That is the thing. In some areas, Yes. small little minuscule part of it we have grown. But what about the whole thing? What about the बेरोजगारी जो है? बेरोजगारी, कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग, भारत की आबादी तो देखिए, कितने लोगों को जॉब नहीं है. युवक को ऐसे ही युवक पड़े हैं, फिर जब चीजें हो जाती है तो उनका मन भटकता है, दूसरे कामों में लग जाते हैं. So all that has to be, country चलाने में the whole balance has to be there. Everything has to be thought about, not only one thing which progresses, So the whole balance has to be thought about, and that is not being taken away. The money has been spent on, banner baji and poster baji, and as you said very correctly, event management. But that's not the real story. Dr. Malhotra, the India Alliance says that हर गली, हर गांव, हर शहर में हम बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान. We need to end the entire politics of hostility, जो नफरत की राजनीति को हमको हटा के प्यार और मोहब्बत की राजनीति. That's what they say. But Narendra Modi ji and the BJP says that ये दुकान है भ्रष्टाचार का, ये दुकान है परिवारवाद का, ये दुकान है तुष्टीकरण का, और इस दुकान को बंद करना. Now how, we got two extremes where you're talking about remove hatred, let us live in peace, let us live in love and harmony. And here BJP says
आपके दुकान जितने हैं वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का दुकान है. And they go on, Modi ji has gone on to prove it. कैसे, first of all, as we clearly said that we require peace. Peace is at the most important. What is the point in making hatred among छोटी छोटी जाति में hatred करो? आजकल Muslim people, कितने सारे मुस्लिम जो है वो डरे हुए हैं. Even Christian localities, we talk with the Catholics and all. They are so scared. Even with sometimes if they want to have a meeting with us, it will be done in behind the closed doors because they are all scared. ये चलो, we may not feel that much, but then at the ground level, this is really evident. So, is it not true that there should be peace? और परिवारवाद क्या, उनके पास क्या परिवार से, एक ही परिवार से लोग नहीं है? ये तो बहुत गलत बात है. लेकिन एक ही परिवार से लोग हैं मैडम, लेकिन ऐसा है कि मोदी जी का ये कहना है कि बीजेपी में भी एक ही परिवार से लोग हैं, बट दे हैव नेवर हैंडेड ओवर द पार्टी टू पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली. फॉर एग्जाम्पल जेपी नड्डा साहब के पिताजी कौन थे, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं है. उसके पहले अमित शाह जी थे प्रेसिडेंट. अब अमित शाह जी के पिताजी कौन थे, क्या थे, मुझे मालूम नहीं, अभी हैं भी या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है. अमित शाह जी के उनके लड़के को भी कितना प्रिविलेज जी, वो तो जी बीसीसीआई में है ना मैडम, उनको बीजेपी तो हैंड ओवर नहीं कर दी है ना. उसके पहले नितिन गडकरी साहब थे प्रेसिडेंट. अब यहाँ पर तो शरद पवार साहब हैं. शरद पवार साहब की जगह पर एक जमाने में अजीत दादा पवार थे, अब सुप्रिया सुले हैं. और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, सोनिया गांधी जी, अभी खड़गे जी, और एक ना एक दिन सबको मालूम है राहुल गांधी जी will take over, which is correct also. I mean, people love him. He is doing the right thing. He is quite capable. भारत जोड़ो यात्रा को आपने देखा, कितना अच्छा लोगों ने उसको रिस्पॉन्स मिला. कोई इसमें कोई दो राय नहीं. करेक्ट. सुप्रिया सुले ताई जी also she has her own capabilities. उनको संसद रत्न कितने बार तो अवार्ड में ये मिला है, संसद रत्न का खिताब मिला हुआ है. So they may have coming from the same family, maybe political background में हो तो ज़्यादा समझ सीख मिलती है, but that doesn't mean कि it is like they are not capable and just because of the father or the mother that they are doing. No, that's absolutely wrong. Both of them are absolutely capable, very capable. सुप्रिया ताई तो मतलब इतना, आप उनके भाषण सुनिए, आप इनके आर्ग्यूमेंट सुनिए, इतना शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी. कितने इंटेलिजेंटली सब हैंडल करते हैं. तो ये कहाँ से आता है? ये तो जी दुरुस्त बात. At the end of the day, that argument really doesn't wash because finally it is the people who have to elect you. आप जिस मर्जी को बना दीजिए, जो मर्जी हो. अब भाई अगर लोग आपको वोट देंगे तो भले आप जिस मर्जी के बेटे हो, बेटी हो, जो मर्जी हो, मतलब आखिर में लोगों को people want you, people think that you can solve things. That's right. They are giving you the votes. Yes. डॉक्टर मल्होत्रा, मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड जो बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर हर गली और हर घर में जा रहे हैं, नेशनल इश्यूज आप देखोगे, नारी शक्ति अभी वंदन अधिनियम, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई, डिजिटल रेवोल्यूशन, राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, 12 को स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान 11 करोड़, आवास योजना 3 करोड़, गैस फ्री 9 करोड़, शौचालय 11 करोड़, आयुष्मान 2 करोड़, नल से जल 12 करोड़. आई मीन डॉक्टर मल्होत्रा, ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड इट सीम्स टू बी लाइक इंडिपेंडेंस से सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया उनके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से. तो नो, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू. आपको बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को कन्विंस करना कि ये है, हमने इसे ज्यादा किया है. वही 9 साल बेमिसाल, मोदी जी बोले 9 साल बेमिसाल, इससे पहले कुछ नहीं किया था, अभी से शुरू हो गया. एंड द रिपोर्ट कार्ड इज इंप्रेसिव सर. मैडम, इफ यू सी इट, इट्स वेरी इंप्रेसिव. हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द पीपल फॉर 2024? It is exactly that they are using big names for the Yojana, very Indianized names, and using the Nari Shakti and all that. The names are very promotable. That's a brand. That's like they are increasing the brand value. This is what a corporate company would think about. How to go about it, and that is exactly what they are doing. But nowadays people also know the reality. People are also intelligent enough. They also read. They also, they also come to know about the things. Now, you tell me that so many things are happening in Manipur. Everybody is aware about what is being done. Nothing has been done. The double engine sarkar, they cannot handle anything over there. The state machinery and the central machinery, there is no coordination.
Nothing is happening, and we all are urging Modi government that after 3 months before, that do something about it, but there nothing really was done. So people are coming to know that what real importance is given to what. It is just given to show shining. Are the ladies safe in India now? No, it is not. गृह मंत्रालय का फेल्योर है सब जगह पे. So all these things people know. तो चलते चलते मैम सुरेना मल्होत्रा जी, Yes. चलते चलते, क्योंकि Yes. आपकी जो पकड़ है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पे बहुत जबरदस्त है कि ये जो मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण, जो हमारे मित्र आदरणीय सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, और चलते चलते मतलब साइडवेज में, वो पूरी तरह तो नहीं बोला उन्होंने, अजीत दादा पवार साहब, इन्होंने जो प्रॉमिस किया है, क्या वो होगा? या मतलब अभी तो 1 महीना खत्म हो गया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है मंडे को खत्म हो जाएगा, फिर Exactly. क्या होने वाला है वहाँ पे? They were in such a hurry to form the government. सब लोग इतने उतावले थे to form the government, and then but you can understand that इतना उनके अभी जो चल रहा है वहाँ पे इतने मराठा लोगों ने स्ट्राइक किया, मराठा लोग असंतुष्ट थे. ये बात जब महाविकास आघाड़ी थी तब ये देखा गया था का? No, there was no strike at that time. The people's problems were being addressed. There was a strike, madam. There was a transport strike. Yeah, that's the one different thing. I'm talking about the Maratha आरक्षण. नहीं, तो कास्ट बेस्ड आरक्षण के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं था. नहीं. There was all, हाँ, there was बातें अच्छी तरह से हो रही थी. तो यही तो बात है, बातें अच्छी तरह से होनी चाहिए. Now the ball is in their court. They have to find the solution. वो है सेंट्रल एजेंसी है. They have to sit down. 3 ट्रिपल इंडियन सरकार है, तो दे हैव टू थिंक अबाउट जो सबको सेटिस्फाई. लेकिन 1 महीने का तो वक्त हो गया ना. तो 1 महीने का तो वक्त हो गया, अभी 10 दिन रह गए शायद. 10 दिन नहीं, आई थिंक इट विल बी ओवर ऑन द 1st of October, शायद 1st अक्टूबर के आसपास शायद. हाँ. जान What they are going to do, we will watch, and हमारा काम है देखना और उस पे देखना कि कैसे बराबर हो रहा है कि नहीं. आई होप किसी के दूसरे लोगों के आरक्षण में वो मतलब ये नहीं हुए. तो वो तो हर जगह पे वो ओबीसी जितने भी संगठन हैं, ओबीसी संगठन जितने भी हैं, और नॉन कुनबी और कुनबी दोनों संगठन जो हैं, सारे संगठन जो हैं, आज की तारीख में दे आर अटैकिंग, दे आर सेइंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. ये क्या है? और जैसे दांगड़ समाज जो है, दांगड़ समाज के ही जो क्या नाम है उनका, प्रदीप जी, पडालकर साहब, हाँ, पडालकर जी जो है, उनको भी आश्वासन दिया है. वो खुद ही अटैक कर रहे हैं अजीत दादा पवार को. वो कहते हैं कि ये तो क्या है, पता नहीं क्या भेड़िया पता नहीं क्या कुछ कहा है उन्होंने. सबको आश्वासन दे दिए हैं और कहा कि दे विल नो injustice to anybody, no injustice to any समाज. But he says 3.5% जो दांगड़ समाज के पास है, that is injustice to the दांगड़ community. He says it should be at least 8%. तो और वो तो बीजेपी के हैं. In fact, then what about the minority? Minority also should be getting something. वो तो भाई वो तो मंडल के हिसाब से शरद पवार जी ने दिया था, मुझे याद है 5% Exactly. शरद पवार जी ने आई थिंक 76 वगैरह में कभी बहुत टाइम पहले उन्होंने कर लिया था. अभी देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते. इतने सारे so called intelligent heads है. Let's see what happens. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. And once again, lovely day today. India has won a couple of other gold medals as well. We have won a gold medal in squash, and we have also won a gold medal, by the way, let me tell you right now, in mixed doubles. That old man, what's his name? Ron Bopana. Yes. At the age of 38 or 40, he's still playing. He's just won the gold medal in the mixed doubles in tennis, which is fantastic. Congratulations. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Great pleasure talking to you. Namaskar, ma'am. Vande Mataram. Thank you. And at the moment with us, from the BJP, a very old friend, Mr. Ganesh Khankar, who is in a hurry. I have just been told, मुझे ये कहा गया है कि गणेश खानकर साहब के साथ सिर्फ 15 मिनट है. गणेश खानकर साहब, नमस्कार. सर नमस्ते. नमस्कार साहब, क्या हो रहा है? आप मतलब कहीं जा रहे हैं सर? गणेश खानकर साहब? नहीं सर, ऐसा है कि कल पूरे मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम रखा गया है स्वच्छता अभियान का जी. तो उसकी बैठकें शुरू है और सेवा पखवाड़ा अभी अंतिम चरण में आ चुका है. तो अरे सर, मैं तो यहाँ उम्मीद लगाए बैठा था. जैसे ही मुझे कहा गया कि गणेश खानकर साहब जरा जल्दी में, सिर्फ 15 मिनट है उनके पास, मैं तो यहाँ उम्मीद लगाए बैठा था कि आप स्वेरिंग इन के लिए जा रहे हैं, अपनी शायद मंत्री बना रहे हैं आपको. ये कहा जा रहा था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि finally the government has woken up and they say without Mr. Ganesh Khankar we cannot run. सिर्फ वो अकेले हैं जो इस सरकार को चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता. गणेश खानकर साहब, सर
आपने जो सर उम्मीद जताई है कि नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा जी। है और शायद मुझे बुलावा आ सकता है, जी, तो आज मैं मेरे कार्यालय के कुर्सी के तट से ये कहने का साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस रात की सुबह होगी। यस 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 सर, इस रात की सुबह होगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपका आशीर्वाद बना रहे। गणेश खानकर साहब, एक चीज तो पक्की है, नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया भारत की ताकत क्या है। अब तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो है पियर ट्रूडो तो उनके बाप थे, जस्टिन ट्रूडो, उनका जो लहजा है वो भी जरा बदल गया है थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि भाई भारत जैसी बढ़ती हुई ताकत के साथ हम लड़ाई नहीं लेना चाहते, वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया। लेकिन आप ये बताएं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि साहब हमें आज़ादी है बोलचाल की, कनाडा में हिंदुओं को मारने की आज़ादी है। इंडियन कॉन्सुलेट के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मारने की आज़ादी है। वो ऐलान करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, $5,000 $50,000 इसको मार दीजिए। ये क्या है? ये तो पहली बार देखा गया है। गणेश खानकर साहब सर, आपने जो बात कही, कल से कनाडा के थोड़े से तेवर में चेंजेस आए हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि इस विषय में पूरी दुनिया में कनाडा की किरकिरी हुई है। अभिनंदन करना चाहिए एस जयशंकर जी का, जिन्होंने यूनो के स्टेज पर जिस गंभीरता से और जिस कॉन्फिडेंस से ये बात रखी दुनिया के सामने, दुनिया ने उसे गंभीरता से सुना। दूसरी बात ऐसा है कि देखिए, कोई भी देश अपनी जमीन को दूसरे देश के विषयों के मामले में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता। दुनिया में ऐसी एक ही जगह है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सारी बातें चलती है। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है हम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के स्ट्रेटेजिक मूव के कारण आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग अकेला पड़ चुका है। कनाडा के लिए भी ये उतना आसान नहीं है। भले मैंने मान लिया कि 7% आबादी इफेक्ट कर सकती है इन सारी बातों के कारण, जो सब बाहर से लोग आकर वहां बस रहे, या कुछ सिख जो है, जो ट्रूडो के पिताजी के समय से लेकर उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इसी वजह से पूरी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे थे। अब उसमें एक बात और आ गई है। देखिए, जब ये शुरुआती घटनाएं हुई तभी कनाडा ने यदि इनके प्रति सख्त रवैया अपनाया होता तो ये स्थिति नहीं आती। अगर इस मामले में पहली बार जब भारत ने चेतावनी दी थी, उस समय उस पर कोई प्रतिक्रिया कनाडा देता और अलगाववादी ताकतों को समझाता या उन पर कानूनी कार्रवाई करता, तो ये सारी बातचीत कभी नहीं होती। आज जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम दूसरे देशों की स्वतंत्रता पर हम आक्षेप लेना प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि दिस इज एन ओवर कॉन्फिडेंस जो आज उन खालिस्तानियों के बीच में आ चुका है, उसके कारण ये हो रहा है। यदि कनाडा ने इस विषय पर गंभीरता से कदम नहीं उठाए तो मुझे लगता है कि देखिए, भारत की आज अपनी साख है, भारत की अपनी ताकत है। इसका नतीजा कनाडा की गवर्नमेंट को तो बड़े पैमाने पर उठाना ही पड़ेगा। खानकर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। छोटी सी बात, इट कुड बी ए कोइंसिडेंस, और ये मेरा खुद का विश्लेषण है। हाल ही में ये मामला शुरू हुआ है 1-1.5 महीने पहले, ठीक है सर। 2 महीने पहले IMF ने पाकिस्तान को पहली इंस्टॉलमेंट दी उनके लोन की। सर, सुनने वाली बात है, पाकिस्तान वाज कंप्लीटली बैंकक्रप्ट, उनके पास एक पैसा नहीं था। उनके पास IMF के थोड़े बहुत पैसे आए और सडनली ये खालिस्तान मूवमेंट कनाडा में, देखिए साहब, भारत में कोई खालिस्तान मूवमेंट नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट जो है वो कनाडा में, मुझे लगता है अगर कभी खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। तो सर, ये पाकिस्तानी ISI का पैसा जो है, कुछ जानकारी मिली है, ये इनको पहुंचा है। उसके बाद इन्होंने दोबारा डुगडुगी बजानी शुरू कर दी है। गणेश खानकर साहब नहीं, देखिए सर, ऐसा है कि ये जो सारी ताकतें जो काम करती है पूरी दुनिया भर में, ये कहीं ना कहीं
लोकल फंड जो होता है वो बहुत इसमें, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे कुछ सिस्टम्स काम करती है फंड के ट्रांसफर को ध्यान रखने के लिए, हवाला रैकेट पर हम ध्यान रखते हैं, वैसे वहां पर भी होगी। देखिए आपने जो बात कही उस बात में तो दम हो सकता है, लेकिन आपने आखिर में जो बात कही ना कि आईएसआई का कनेक्शन, मैं उस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि आपने जो आईएमएफ की बात कही, तो आईएमएफ की बात आईएसआई के साथ जुड़ना मैं उतना उसको गंभीरता से नहीं लेता, वो बात हो सकती है, लेकिन ये जो ड्रग्स के सारे व्यापार है और पंजाब में जो सारे जो बातें चलती है, यानी आज पंजाब की क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। वहां पे कबड्डी लीग से लेके सारे रेस्टोरेंट्स और बार में जो कुछ अवैध गतिविधियां होती है उनसे भी इन सारे लोगों को आज पैसा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये आईएमएफ का जो विषय आपने बताया वो तो बात सही है, लेकिन यह जो सारा कनेक्शन है इस पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपने जो बात कही ये बात बड़ी गंभीर है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि ये बात सही साबित हुई तो आईएमएफ पर भी बहुत बड़े सवाल उठाए जाएंगे। नहीं सर, IMF will just cancel their loan because the IMF does not know. They have given it for development purposes, but these guys have got the money. पैसा इनके पास आ गया है, तो वहां से इनका पहला काम यही होता है साइफन ऑफ कर दो इस तरफ। That's what usually happens. प्रदीप जी, ऐसा है कि पाकिस्तान ने यदि इन सारी बातों को गंभीरता से लिया होता तो सर पाकिस्तान भले हमसे पीछे रह जाता, लेकिन आज वहां के 2 वक्त की रोटी के लिए जिस तरह से आम आदमी भटक रहा है, बच्चे भूखे हैं, यह स्थिति पाकिस्तान की नहीं आती। बट बाय द वे कांग्रेचुलेशंस गणेश खानकर जी, अभी आधा घंटा पहले खबर आई है इंडिया और पाकिस्तान का पूल ए में हॉकी का मैच था एशियन गेम में। इंडिया जस्ट डिफीटेड पाकिस्तान बाय 10 goals to 2, 10-2 से पाकिस्तान को हराया गया। जी प्रदीप जी। संकल्प सप्ताह नरेंद्र मोदी जी बोले सबके आकांक्षाएं और सबका विश्वास। मोदी साहब विश्वकर्मा योजना का सक्सेस बीजेपी गिना रहा है कि 18 डिफरेंट कारीगरी को आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको टूल किट्स दे रहे हैं एंड 13,000 crore हैज बीन ईयरमार्क्ड। गणेश खानकर साहब बीजेपी आपका कहना आपका जैसे, मगर राहुल गांधी जी का जो विजिट है फर्नीचर मार्केट पे, वही विश्वकर्मा से जुड़े हुए लोगों से मिलना, फर्नीचर वर्कर्स से मिलना, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कहना है कि हम we are trying to understand the problems and plights of the carpenter community। विश्वकर्मा जितने समाज के लोग हैं उनसे मिलके उनके दुख दर्द को समझने का कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बट बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्स इट फोटोशूट अपॉर्चुनिटीज, फोटो अपॉर्चुनिटीज, और इनके दिल में इसको जरा कैसे देखते हैं खानकर साहब, हाउ डू यू सी इट एज अ स्पोक्स पर्सन? देखिए सर ऐसा है ना कि इससे पहले हमने जो सारे रास्ते पर धंधे करने वाले उनके लिए भी हमने पीएम स्वनिधि योजना लाई थी। उन्हें भी 10-10 हजार रुपए के कर्जे दिए थे और ये देते समय कहा था कि यदि आपने इसे निश्चित समय में ईमानदारी से लौटाया तो इससे भी आपको बड़ा कर्जा मिलेगा ताकि आप अपने उद्योग को ठीक तरीके से चला सके। देखिए ऐसा है कि विश्वकर्मा योजना लाने के पीछे जो बड़ा उद्देश्य यह था कि जो छोटे छोटे कारीगर है जो कुछ अपने दम पर नया कुछ करना चाहते हैं या जिन्हें आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का देने की आवश्यकता थी, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना लाई है। देखिए अब मोदी जी के काम करने की पद्धति को थोड़ा सा सर समझना पड़ेगा। मोदी जी ने कभी भी किसी भी योजना को केवल लोकप्रियता के लिए नहीं लाया है, वे सीधा जनता से जुड़ते हैं। आज जो कारीगर समझो प्रशिक्षण लेने के बाद में यदि 1 लाख रुपए का ऋण लेता है और यदि 1 लाख रुपए का ऋण वो चुका देता है तो सर उसको फिर 2 लाख रुपए मिलेंगे। वो 2 लाख रुपए का ऋण चुकाएगा उसे और 4 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए ऐसा है, 2 बातें इसमें मोदी जी ने बताने की कोशिश की है कि हाँ हम आपको हाथ देना चाहते हैं, आइए आगे बढ़िए। दूसरी बात, ईमानदारी से यदि आप काम करेंगे तो उसी ईमानदारी के लिए आपने जो मेहनत की है उसका 2 गुना हम आपको फिर से वापस देंगे। देखिए सर, आपने मुझे जब राहुल गांधी जी का उदाहरण दिया तो राहुल गांधी जी जा रहे, लोगों की समस्याएं सुन रहे, उनसे बात कर रहे। सर ये राहुल गांधी जी यदि कर रहे तो मुझे ऐसा लगता है
कि देश के विपक्ष को अब डेवलपमेंट के काम में थोड़ी सी रुचि लग रही है, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। राहुल गांधी जी हर बार नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत फहमियां फैलाकर, यानी आज तक की कांग्रेस की राजनीति ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध ही रही है। यदि विश्वकर्मा योजना प्रारंभ होने से पहले यदि राहुल गांधी विश्वकर्मा समाज फर्नीचर वालों से मिलने जाते तो मैं ये समझ सकता था कि नहीं, समाज के हर वर्ग से वो मिलने के लिए जा रहे। लेकिन जब ये योजना का प्रारंभ हुआ उसके बाद वो मिलने के लिए जाते हैं तो ध्यान में आता है कि राहुल जी, अब ये विश्वकर्मा योजना प्रारंभ होने के बाद ही आपको ऐसा लगा कि समाज के इन वर्गों से मिलना चाहिए? क्या इससे पहले कभी राहुल गांधी मिले थे क्या? तो नहीं मिले थे। तो हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। राहुल गांधी जी अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सर, एक बात को आपको समझना होगा, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना दी, जो रोड पर, रास्ते पर ठेला लगाता है, केला बेचता है, जो दिन में 1000-2000 रुपए का कई सामान लाता है उसे बेचता है, 2000 के बदले वो 2500 रुपए घर लेकर जाता है, 3000 रुपए घर लेकर जाता है। सर, जो रोज 5-6 हजार रुपए की खरीदारी कर कर रोज शाम को अपने पैसे घर लेकर जाता था, उसे हमने 10,000 रुपए का बिना गारंटी का उन्हें हमने ऋण दे दिया। अब ये छोटे कारीगर जो है, जो अपना काम यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो सर, कोरोना से बाहर आने के बाद यदि 5-50 हजार रुपए के उसे मशीनरी चाहिए होगी, कोई टूल्स किट चाहिए होगी, तो उसके पास आज वो परिस्थिति नहीं थी, आज वो खरीद सकता है। और ये ऋण उसे सर बिना गारंटी के मिलने वाला है। सर थोड़ा सोचिए ना सर, यदि रास्ते पर काम करने वाले किसी छोटे से नाई को कोई 1 लाख रुपए का ऋण मिलता है तो क्या वो अपनी दुकान खोलकर वहां पर अपना काम नहीं करेगा? सर, छोटा सा कारपेंटर जो रास्ते पर बैठकर रोज सवेरे राह देखता है किसी की कि कोई तो बुलाए और घर की कुंडी लगाने के लिए मुझे घर ले जाए, यदि उसे ऋण मिलेगा 1 लाख रुपए का तो अपनी दुकान खोलकर बैठेगा, वहां सामान बनाएगा, शान से बेचेगा। सर, ये हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। गणेश जी, विश्वास है, जनता पर विश्वास है सर हमें। सेकेंड थिंग, आज सब जगह आपने जिस प्रकार से कहा कि बीजेपी, बीजेपी इज सेइंग दैट 27 इयर्स नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आपने 2 दिन में लागू किया, 27 साल से कांग्रेस एंड कांग्रेस लेड अलायंस वर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, सोचते रहे। मोदी साहब ने 2 दिन में लोकसभा राज्यसभा क्लियर करके इसको बिल बना के नारी शक्ति को अपलिफ्टमेंट दिया, सोशल एम्पावरमेंट किया। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आज पूरे सब सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि राहुल गांधी जी बोले कास्ट सेंसस टू सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस आपको करना पड़ेगा, आपको सोशल जस्टिस वुमन को प्रोवाइड करने के लिए, जाति जनगणना, राहुल गांधी जी का कहना। और जब भी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं ये मुद्दा उठाता हूं तो बीजेपी डाइवर्ट करते हैं, टॉपिक डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम, टुवर्ड्स नफरत के राजनीति, टुवर्ड्स ऑल दिस। तो व्हाई ही सेज, व्हाई इज मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, कास्ट सेंसस टू सोशल जस्टिस? कानकर साहब, देखिए, ऐसा है कि मुझे यानी कभी कभी राहुल गांधी जी के जो सारे थिंक टैंक के लोग हैं, कभी कभी मुझे उन पर तरस आता है। मैं बहुत छोटा आदमी और आपके चैनल से बात कह रहा हूँ, मुझे कहने के लिए आसानी होगी, लेकिन मुझे थोड़ी राजनीति जब समझ में आती है तो मुझे ये भी समझ में आता है सर कि आप थोड़ा सा सोचिए ना सर, कास्ट के लिए ये करने के लिए एक समय सीमा तय है। बिहार ने भी इसके बारे में प्रारंभ किया, कितनी मुश्किलें उनके सामने आई ये आप भी जानते हैं। हर 10 साल के बाद में ये सारा करने का केंद्र सरकार का अपना एक प्रयास होता है, उसके नियम है, उसका एक कानून है, और वो नहीं करना है ऐसा प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार तो नहीं कहा है, एक भी बार नहीं कहा है। हम कोरोना से बाहर निकले, कोरोना से बाहर निकलने के बाद हमारी प्रायोरिटीज अलग थी। समाज को अपने दम पर, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर हमें उन्हें आगे बढ़ाना था। हमने गरीबों का ध्यान रखा, हमने इंडस्ट्री को ग्रोथ लाकर हमने कर दिया। राहुल गांधी जी को लगता है इसलिए वो हमने करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी जी को क्यों लगता है? ये उनकी सोच क्यों है कि मैं जो कहूं, अरे भाई ऐसा है, आप जो सोचते थे वो मनमोहन सिंह जी भी पूरा कहा सुनते थे।
नहीं जी। सुनते थे ना, इसलिए हम मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। सर सिंपल सी बात है, इतने बड़े विश्वकर्मा समाज के सोचने के बाद ये पूरा के पूरा जो समाज है ये ओबीसी वर्ग में ही आता है। उस समाज को हम खड़ा करना चाहते हैं सर, हम कहाँ किसी पर अन्याय करना चाहते हैं। अब ये राहुल गांधी जी की राजनीति है, उन्हें लगता है कि मैं जो कहूँ दूसरे दिन इस देश के सत्ताधारियों ने उस पर बोलना चाहिए, उनके पीछे लगना चाहिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की एजेंडा पर काम करने की आदत है, हम बहुत डिस्टर्ब नहीं होते। और कम से कम ये वो समय नहीं है सर कि वह संसद में कपिल सिब्बल और उनके समक्ष कुछ बड़े नेता जो मुद्दों पर तथ्यों को लेकर बात करें, सर इनके पास कोई व्यक्ति नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को मौका दिया प्रधानमंत्री जी ने, सर उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इनके लिए संसद में बात कौन करेगा। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में सारे भाषण किए और जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हो गए तो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी संसद से उठकर चली गई। माफ कीजिए, मैंने ये कहना अच्छा नहीं, वो संसद से भाग गई। तो सर क्या ये बता दें, प्रधानमंत्री जी चलते का हम चलते भाषण नहीं सुन सकते थे? क्या हम प्रधानमंत्री जी का सामना नहीं कर सकते थे? But that was terrible. संसदीय लोग ये करना चाहिए। सर वॉकिंग आउट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ थिंग, दैट्स टेरिबल। आप खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए और आप खुद वॉकआउट कर रहे हैं। चलते चलते, आई नो यू हैव टू गो, आप बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हैं। सर ये मणिपुर का जो मसला है ये कब खत्म होगा सर? अभी तक दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत डिस्टर्बिंग है ये कि अभी तक वहां पर नॉर्मलसी नहीं आई है, समानता वहां पर नहीं आई है। सर क्या कर रहे हैं उसके बारे में? ऐसा है कि 2 दिन पहले जो घटनाएं हुई है और जो विद्यार्थियों का विषय आया स्टूडेंट्स का, वो सुनने के बाद तो सर यानी हम भी आश्चर्यचकित है। आप जो बात कह रहे हैं, बीच के दिनों में संसद पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होने के बाद बहुत हद तक उसमें शांति आई थी, बहुत हद तक ये सारे कंट्रोल में आ चुका है, ऐसी मानसिकता बनी थी, उस तरह की सारी न्यूज भी आ रही थी। लेकिन गत 2 दिनों से जो सारी न्यूज आ रही है वो मुझे लगता है कि हम सबको चिंता में डालने वाली है। लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी कि इस पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से, बाहर से कोई स्टेटमेंट आए ये सारा बंद कर दिया है सर। अब मणिपुर के बारे में देश के भीतर की बात सुनेंगे तो अब इस पर कोई चर्चा विमर्श अब कम हुआ है, क्योंकि विरोधी पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाकर पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की थी, बावजूद उसके किसी ने मणिपुर के विषय में उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर, सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी देखिए, जो विद्यार्थी सड़क पर आए वो इसलिए सड़क पर आए क्योंकि 8 जुलाई का कोई वीडियो था, 8 जुलाई का कोई वीडियो था जो दोबारा रिलीज किया गया, जिसपे 2 मिताई विद्यार्थियों को मतलब दिखाया गया है उस टेप के अंदर कि उनकी मौत हुई है। सो ये ओल्ड वीडियोस जो हैं ये बार बार जो सरफेस कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को इसके बारे में तफ्तीश करनी चाहिए। ये कौन सा ग्रुप है जो बार बार इस तरीके से वहां की आग को बुझने नहीं दे रहा? गणेश खानकर साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। ये ऐसा है कि संसद शुरू होने से 2 दिन पहले महिला का वीडियो दिखाया जाता है, कोई G20 होने से पहले कोई और एक वीडियो लाया जाता है। देखिए ये पूरी तरह से तय करके अपनी केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो कोई तत्व इसमें होंगे, उसमें देखिए ऐसा है कि हम जो बात मान रहे थे, बीच में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि G20 के सक्सेस के कारण पूरी तरह से डिस्टर्ब है तो चाइना है, पूरी तरह से डिस्टर्ब है तो पाकिस्तान। जो बेल्ट है, जो हमें बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करने के बावजूद भी उनके हाथ में कुछ लग नहीं रहा था, ये उनके लिए तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं थी कि पूरी दुनिया ने अब भारत की बात को मान लिया है, भारत की प्रतिमा एक विश्व गुरु के नाते आगे बढ़ रही है। ये आपने जो आखिर में जो बात कही ना, ये वीडियो ये तय करके बार बार कुछ समय के बाद रिलीज किए जा रहे। जैसे ही थोड़ी सी शांति वापस आती है, कुछ बातों पे एकमत बनता है, ये सारे लोग उस शांति को भंग करने की बार बार कोशिश करते हैं। और अब ये लग रहा है कि जिस तरह से एकाएक आंदोलन भड़क उठता है और वे अपने सुरक्षा बलों पर आक्रमण करते हैं, ये तय करके किया जा रहा है सर, ये तय करके हो रहा है। दुरुस्त बात है। और तो और छोड़िए चाइना की फ्रस्ट्रेशन, आप देखिए कि उनके बड़े सीनियर साइंटिस्ट बोलते हैं कि चंद्रयान डिड नॉट इवन लैंड एट द साउथ पोल।
of the moon. सारी दुनिया जो है वो बोलती है that it landed on the south pole of the moon. ये साइंटिस्ट साहब जो हैं चाइना के वो बोलते हैं we did not go anywhere near the south pole. Anyway, thank you so much sir, गणेश खानकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. I wish we could talk some more, लेकिन अब क्या है, कल आपको मंत्री पद संभालना है, आपको जाना है. चलिए, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. देखिए, कभी कभी सर ऐसा है कि कहते हैं ना कि हमें आशीर्वाद में और पॉजिटिविटी में बड़ी ताकत होती है सर. जी, दुरुस्त बात. धीरे धीरे वायुमंडल का बनना प्रारंभ होता है. पहले के जमाने में जो साधना होती थी और जिसे हम जप कहते हैं, अब मैं अध्यात्म की ओर नहीं जा रहा हूँ, उसका कारण ही वो था कि वो वायुमंडल में एक तरह की पॉजिटिविटी जो शंखनाद से आती है, शंखीय फ्लो होता है, उसी तरह की आपकी भी बात की पॉजिटिविटी मेरे हृदय तक पहुंचे, यह मैं आपसे कामना करता हूँ. क्या वो होगा सर, बिल्कुल होगा. और मेरी जबान जो है कभी भी गलत नहीं होती, ये याद रख लीजिएगा. जो मैंने कहा है आज तक का तो रिकॉर्ड यही रहा है. गणेश खानकर जी नमस्कार और वंदे मातरम. थैंक यू वेरी मच. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. थैंक यू सो मच. Thank you. Well, you know, it is most disturbing what is happening in Manipur. Pradeep ji, there is a pattern. Each time peace returns, suddenly some new video comes in. Yes. 4 महीने पहले का, 2 महीने पहले का, कभी का कोई वीडियो आ जाता है. अब अगर मिताई शांत हो जाते हैं तो आप कुकी का वीडियो निकाल देते हैं, कुकी शांत हो जाते हैं हम मिताई का वीडियो निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे शांति की पुनर्स्थापना नहीं होगी. Total unrest. And then it gives Rahul Gandhi to talk about the silence on Manipur. It's a beautifully worded statement that Rahul Gandhi, silence on Manipur. That's right. The government has killed the idea of India. Violence and rape is not a part of India. PM listens to only 2 people. One is Adani and one is Amit Shah. So, Yes, he's got it ready for. And you do realize, of course, that the state where the maximum number of rapes have taken place in the last year has been Madhya Pradesh. And that, by the way, is another statistic which is being used again and again by the BJP, by the Congress against the BJP in its election campaign. And that is something that Mr. Shivraj Singh Chauhan will have a very hard time explaining. But there are charges and counter charges. Rajasthan dekho, Chhattisgarh dekhiye. Which is quite correct. Himachal Pradesh But these are official figures. These are the NCRB figures. These are the figures of the government of India. These are not the figures of the Congress. These are the figures which have been released by the Union Home Ministry headed by Mr. Amit Shah himself, that the rape capital of India is Madhya Pradesh, not any other state. Right, and we do have a few comments. I think we do have a few comments. आपको हमारा शो कैसा लगा? मुझे आज अपने शो में बहुत मज़ा आया, सुरेश मेनन साहब की वजह से, बहुत ज़बरदस्त. खैर नासिर साहब भी बहुत अच्छा बोले और गणेश खानकर साहब और डॉक्टर मल्होत्रा भी बहुत अच्छा बोले, ऐसी तो बात नहीं है. But Suresh Menon was really and truly brilliant as usual. He was fantastic. आप अपने कमेंट ज़रूर भेजते रहें. आपको हमारा शो कैसा लगा? नेशन नाउ आपको कैसा लगता है? किस प्रकार हम लोग आपकी और सेवा कर सकते हैं? ज़रूर लिखें. And if you haven't subscribed to the channel, please do so. Right, let's take a look at some of the comments which have come. This is your show yesterday, is it? Bhagat Singh is right. Poonam Sharma 3030. Bharat Singh ji the usme. Bhagat Singh is right. अच्छा भरत सिंह, all right. I think she means Bharat Singh. Okay. जी उन्होंने गलत लिखा है. आपका जो कल का शो था, Correct, exactly. कल मैं किसी कारण में रा नहीं पाया था. महमूद देशमुख साहब. It says shut up. That's it. Over Arvind Kejriwal being a good candidate for PM. That's nice. ABC 24787. This is Mr. Arshad Azmi. Only action taken is remove this person. Janak Patel 1557. Right. Which person is he talking about? Arshad Azmi or whom are they talking about? Right. Best PM for India is Arvind Kejriwal. Again, that is Mahmood Deshmukh Saab. This is Lakshmi Srinivasan 7066. If he becomes a PM, Bharat will return to be Khalistan. Will turn out to be Khalistan. I think that's what Lakshmi Srinivasan 7066 means or says. Everybody's favorite actress, my favorite actress, YK Malhotra Saab, 8997, excellent news. Vahida ji fully deserves this award. My congratulations to her for this achievement. May God bless her.
Isn't that lovely? Yes, fantastic. Sir. Vaidare ma'am, absolutely lovely. Yes, yes. She's done great service to the. Sure, yes, film and industry. she's acted in some of the best movies. Says Arvind Kejriwal's Chup Chups. Raman Kutti Balakrishnan 8837. About Mr. Kejriwal being a very good candidate for Prime Minister. Oh, आप ये क्या है? माना किया था इंटरव्यू में गांजा फूक के मत जाओ. नीरव मारू 912221 गांजा फूक. So you're getting a lot of reactions for Kejriwal. That's right. गधों को बाप बनाना कोई केजरीवाल से सीखे. भास्कर J007. He is OG. He is OG. What is OG? I don't know. OG क्या होता है? He own goal or something like that? Is that what you mean? Robin Hood Party. Suryakant Thakur 2862. Is that it? Or do we have more? I'm confused now. I was going to vote for Rahul Gandhi and now this Kejriwal. Arvind 9105. This is really and truly lovely. Alright, we got a comedy show going. Rahul Gandhi certainly has become fit physically and mentally for India leader. On the other hand, Namo have one problem, too much ego and slowly disconnect with the ground reality. What is the name? User CC9RZ2NG fighting. 5T. Very, very. Five Seems to small be t. some kind of a. some agent. kind of a code name, right? Yes. FBI now being relaxed. I think this was about Abhishek Mishra. It appears you are running a campaign for Rahul Gandhi. Jaswant Singh. Are we running a campaign? We haven't been paid. I must send a bill. Karan Johar releases first look of upcoming film Kill. That is it will release officially after some time. That is in Spanish. Amigo now is Theo. Is it Spanish or is it Portuguese? Como faco pra I assassino? remember Amitabh Bachchan's Zinadaban song. Or More Mio? Yes. That is Italian. Okay. Before 2024 Lok Sabha election, Kejriwal will incite the heart to start his second innings like Sisodia because of multiple scams. Radha Moh. That's it. Right? So Mr. Kejriwal, he draws a lot of response. Lot of response for and against. Yes. I don't remember anybody for him. No, there was a comedy. It says, "Oh God, I was thinking of We're voting for Rahul Gandhi." Now this Kejriwal. You have confused me with Kejriwal. Well, that's just about it on tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोग देखते रहे Nation Now. We'll of course be back with you again with another edition of this show on Nation Now just for you. आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें and do keep sending in your comments. That is just about it. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.